Sir, meanwhile, can I share the screen, please? Yeah, ma'am. Yeah, please. It's not allowing me to share the screen. मैम आप मेरे को WhatsApp भेज, मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ मैडम. Sir, I won't be able to shift it otherwise, forward or backward. So I need the control myself. Yes. अब करिए मैम, अब हो जाएगा. अब आप कर सकते हैं. Okay, okay, okay. Is the screen visible? Yeah, ma'am, visible. Okay, fine. Just a minute. Good morning, all the members of the Panipat branch. And Panipat branch is very pleased to organize a refresher course on GST from today onwards, 19th May to 28th May, next Thursday, except Sunday at 11 to 12:30 p.m. Friend, this is the very much right time to introduce such type of course as the load of work is less as the lockdown period is going on. So now I welcome and I celebrate the welcome of the chief speaker of today's webinar, Ms. Aanchal Kapoor ma'am. She is having more than 10-year experience, rank holder in the CA and gold medalist in graduation. She had delivered many deliberations through webinar, seminar, etc. And recently I just heard the webinar of Amritsar branch of her. Now I invite Ms. Aanchal Kapoor ma'am to start her deliberation. Please, ma'am. Should I start, sir? Yeah, ma'am. Please. Okay, and sir, I think so. The net connection is not that good. Can I switch off the video so that the voice clarity is enhanced? Okay. Right? So, first of all, I would like to thank Panipat branch for giving me this opportunity to present the topic, and that's to the first lecture for the course. कहते ना पहला person पूरे कोर्स का वो बताता है. So I hope कि I am able to meet the expectations of the branch. And sir ने मुझे बहुत जल्दी वैसे inform कर दिया था on such a short notice. Yes, but anyhow, I will try to do the justice as much as possible. And one thing more, I want you people to be with me because the topic for the day is quite lengthy. We are going to cover the supply, we are going to cover the charging section, we are going to cover the registration procedure. So along with the rules, etc., forms, everything we will be covering it up. So you have to be with me. And sir, as I already told you that this session is going to be a bit longer as to 1.3 minutes. So 1 hour 30 minutes, it will be exceeding. So because I want members indeed to take the benefit of it if we are, if the branch has taken this initiative, so we must justify that. Okay. Secondly, in this PPT which I have prepared, the branch must have already shared it with you as was already communicated to them. In this, I have put the act along with the relevant rule and the notification which has covered, which has come in that section. So when you will read the act, you will find the notifications also. So now, not taking much time, I'm directly coming to the deliberation. We'll try to communicate in between with you people to make the session interactive through the chat and all, but we might not be able to see it all the time. So now I start the deliberation. Okay. Okay, so what we are going to do today is, I want to tell you, because it is the first lecture, I want to come to tell you people that here in this, there are, you know, there are basically two main acts, IGST Act and CGST Act. Sir, I request the other participants to please mute their mics. Mukesh, please mute your mic. वो तो भी time लगेगा उसमें. Mukesh. Yeah, thank you so much. So now, coming towards it, sir, what is the topic for the day? How we are going to deal with it? First of all, this slide tell me about it. I have placed here IGST Act also and CGST Act also. Sir, हम क्या करने जा रहे हैं?
very first lecture is dealing with the very first one of the important topics of both the acts. See, as you know, section 1 always deals with the title, extent and commencement. Section 2 deals with definition. So definition are to be dealt, according to me, at the relevant part where the definition has to be used. So third and fourth section deals with the appointment of officers and their authorization. So the main first section in IGST Act is section 5, which is our charging section, and that is what is my topic for the day is levy and collection. So IGST Act ka first section, charging section is section 5, and CGST Act ka section 9 is the charging section, which talks about the levy and the collection part. So we will be covering section 5 and 9 of our respective acts, and one of the most important definition is the definition of supply. So usually the definitions are given in section 2, but the supply here, as you see, is the taxable event. So I have made a slide here for you that levy and collection is basically the charging section. In CGST it is section 9, in IGST it is section 5, and the taxable event on which the GST, the goods and service tax, is based. What is the taxable event is supply, which has been dealt with in section 7, and along with it we have to read the 3 schedules, schedule 1, 2 and 3. So this will be the entire coverage other than the registration for the topic for the day. So now we are clear what we are going to do. Wherever relevant, I have placed the relevant case laws also for your relevance, the relevant AARs, the High Court judgments, so that we can also get those points considered. Now, moving ahead. सबसे पहले, we are talking about Goods and Service Tax Act. And being the first lecture, it is my duty to tell you what are goods and services as referred to in CGST and IGST Act. So the goods की definition section 2 clause 52 में दी गई है of the CGST Act, and 2102 में services की definition है. So what they have considered here, sir, एक चीज और बता दूं, every topic in GST is so vast that we can spend just 2 hours on discussing a particular topic and you will not get to know even, because so many intricacies are involved in it. So abhi I will taking only that part of the definition which will be relevant for today's topic. So here I want to bring your attention to the definition of goods, which says that goods means every kind of movable property. So as you see, immovable property को goods की definition में include ही नहीं किया गया. So wherever I will refer to immovable property, it will not be goods, right? And services, पहला limb भी पढ़ रही हूँ. I'm just reading the first limb of it. It says services means anything other than goods. Services means anything other than goods. It means goods को छोड़ के सब कुछ जो है वो services हैं. Now coming further, it says that इसी definition को I have put in here. Goods means every kind of movable property. Means में every kind of movable property, and it also has some inclusive part in it. Actionable claims. What are actionable claims? Your debtors, your insurance claims, lottery, gambling, all these are actionable claims. So they have included the actionable claims and the growing crops if they are swayed from the land, yani not attached to or forming part of the land. Now it says this was the main issue, that movable property is included, and whatever is not goods is services. Anything other than goods is services. Iska matlab, can I make it a point that now I need an answer from all of you in chat box. Now can I say that the immovable property forms part of services? Say yes or no. Yeah, can we say that the immovable property forms parts of services? Because anything which is not goods, yes, I got an answer, yes. Now let's see how the government has included the immovable property, sometimes the part of services, and how the immovable property, we will be taking it today, that how they have sometimes taken it out of the preview of GST. Now coming further,
ये बात को ध्यान में रखें, because when I will come to schedule 2, I will take you that it is not goods. Immovable property can never be goods. It will always form either the part of services or will be kept outside the GST preview. दोनों में ही लिखा है, money and securities are not goods, neither goods nor services. So make it a point. This point will also come into picture in today's session when I will say money and securities, yani cash involvement will not amount to services. When I will talk about the cash goods, gifts in schedule 1, I will be coming to the point of money. So this was the basic definition of goods and services as defined in the Act, which includes both the parts, means as well as includes, right? Moving ahead. Next is that first, the charging section, section 9 of CGST Act. Okay, can you tell me which part of the Constitution deals with GST? Okay, I just come to it without wasting any time. Article 366(12)(a) deals with the goods and service tax. जो बताता है, it is the tax which will be levied on the goods and services. So अब वहां से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेकर सेक्शन 9 हमारा चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? सर, मैं आपको अपने इनपुट्स देने के अलावा I will be discussing thoroughly the Bear Act also with you. So let's read the lines. Subject to the provisions of subsection 2. Subsection 2 को छोड़ दीजिए. There shall be levied a tax called Central Goods and Service Tax on intra-state supply of goods. By the time we people know the basics of what are intrastate supplies or interstate supplies, so that is why I have not included the examples for that. Intrastate means when it is within the same state or within the same union territory, and interstate means interstate will form part of section 5 of IGST Act. Interstate means when there are 2 or more states involved, 1 state, 1 union territory involved, or it is between 2 or more union territories. So that is interstate. But because we are dealing with CGST or SGST Act, it talks about the intrastate supply of goods. और इसमें tax कैसे लगता है? Half and half rate पे. So that is why they have said except on supply of alcoholic liquor for ह्यूमन कंजम्पशन. सर मैं बता दूं, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अभी जो है बाहर रखी गई है, वहां पे लिखा गया है एक्सेप्ट एल्कोहलिक लीकर. So when the constitution has kept the alcoholic liquor, it is very much the part of state taxation, right? Or abhi we have all seen so many WhatsApp flowing on, so many issues that it is the saving of economies and the state governments are particularly depending upon the revenue which is coming from the alcohol or liquor sector. So it says that subject to the provisions of subsection 2, there shall be levied a tax called CGST, Central Goods and Service Tax, on all intrastate supply. Interstate is dealt in section 5, except on the supply of alcoholic liquor which has been kept outside the purview of GST. किस पे लगाना है? वैल्यू बता दीजिए और रेट बता दीजिए. वैल्यू सेक्शन 15 अभी आपका टॉपिक आएगा इन द कमिंग सेशंस, व्हाट हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू एंड एट सच रेट्स. सर रेट्स के लिए आपके पास डिफरेंट नोटिफिकेशंस हैं. So those for goods you have a separate notification, for services you have a separate notification. So goods and services की value और rate, but the maximum rate provided here is 20%. यानी अगर मैं CGST और SGST को इकट्ठा कर दूं, the maximum rate is 40%. 20 into 2, 40%. As notified by the, अब यही चीज vis-a-vis when we go to IGST Act, so it will be direct 40%. As notified by the government on the recommendation of the council and collected in such manner as may be prescribed shall be paid by the taxable person. Now, it says that intrastate supply के ऊपर as per the value of section 15 at the rate prescribed you have to pay, and the notifications that have come into it is 1 by 2017 which deals with goods, then you have 11 by 2017 which deals with the services rates. Now, moving ahead, central tax on the supply of petroleum. आपको पता है 5 petroleum products, they have mentioned that it will come into the preview of GST
with the effect from date as may be notified. And the same provision has been mentioned in the Constitution also. And now my question is, will LPG form part of these 5 petroleum products? Can I have the answers, please? Sure, sir. We'll be keeping Hindi English mix. Abhi act पढ़ रहे थे, so that's why I was might be, but I am trying my level best to mix it Hindi English. Anyhow, no answers. Sir, LPG is taxable. It includes petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas, and not liquefied petroleum gas. So LPG is very much taxable. तो अभी तक हमने सेक्शन 9 को 2 पार्ट्स में फर्स्ट क्लॉज 1 और 2 को डील किया है, जिसमें हमने बात की है कि इंट्रास्टेट सप्लाई टैक्सेबल होगी, इसमें आपके पेट्रोलियम और प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, 5 प्रोडक्ट्स, एंड इसमें नहीं आएगा आपका लीकर, राइट। नेक्स्ट इज 3 और 4। सर ये 3 और 4 जो दोनों है ये आरसीएम के साथ डील करते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज 9 क्लॉज 5 ई-कॉमर्स ऑपरेटर के साथ डील करता है। आई एम गिविंग, सर दीज आर द वेरियस नोटिफिकेशंस दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, जो इस सेक्शन में आई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जब मैं आपके साथ रजिस्ट्रेशन का आज ही प्रोविजन डिस्कस करूंगी, तो हम ई कॉमर्स, याद रखिएगा 9 क्लॉज 5 में जो ई कॉमर्स दिया गया है उसके प्रोविजंस को आई विल बी टेकिंग अप इन डिटेल। आज हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर इन डिटेल विद अ चार्ट डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज माय चार्जिंग सेक्शन विच टॉक्ड अबाउट कि किस सप्लाईज के ऊपर किस रेट से और किस वैल्यूएशन के हिसाब से टैक्स लगना है। नाउ what is the most important is the taxable event, कि टैक्स लगना किस पे है, और ये जो taxable event है that is supply. Supply is the taxable event in case of GST. Now let's see section 7 ने scope of supply को कैसे define किया। अगर मैं पढ़ूं starting से, it says for the purposes of this act, यानी wherever in this act you are reading supply, you will be taking the supply as below. जहां जहां भी आप सप्लाई पढ़ेंगे, आप सप्लाई को इस तरह से कंसिडर करेंगे। एंड इट इज स्टार्टिंग विद द इंक्लूसिव डेफिनेशन। For the purposes of this act, the expression supply includes, it is an inclusive definition which says that it includes all forms of supply of goods such as मतलब examples दी गई हैं, sale, transfer, barter, exchange, all these are the types. Now what is the second part? Made or agreed to be made for a consideration. Agreed or made to be agreed means अगर अभी services render नहीं की है, goods deliver नहीं किए, it is covering advances also. Made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. So पहले मैं first part को ही divide करती हूँ. What I could read from it, all forms like all forms. एक तो ये inclusive definition है, and this is an examples given, such as transfer. Such as means examples. Made or agreed to be made for a consideration in the course or furtherance of business. Now, इसमें समझने वाली बात क्या है? In the course or furtherance of business. So, पहला limb, which I will be taking up all the forms of supply made or agreed to be made in the course or furtherance of business, right? Now, what is course or furtherance of business? Sir, lots and lots of litigation is going on. What is course or furtherance of business? So, summarizing it, what has come from the various circulars, press notes of the government, they says that course or furtherance of business means, abhi hum business ki definition bhi dekhenge. Course or furtherance has not been defined, but the business term has been defined under the CGST Act. It says, what is course or furtherance of business? In shorter terms, it must be commercial motive. Motive commercial hona chahiye. Profit may or may not be there, right? So it must be course or furtherance means that the commercial motive ho, profit ho bhi sakta hai, nahi bhi ho sakta. It can be a regular transaction or it can be a one-time transaction. Example I have quoted in fact, exhibitions or trade fairs.
exhibitions or trade fairs are one time transaction, but still it is course or furtherance of business. सर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की जो डेफिनेशन है, जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, दैट आर सो वास्ट कि वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि व्हाट कैन बी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. द बिजनेस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 17, डेफिनेशन पार्ट में ही है. आई हैव गिवन अ समरी ऑफ इट कि कोई भी ट्रेड कॉमर्स, याद रखिएगा, प्रोफेशन, वोकेशन, ऑल दीज विल फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट. सो चाहे कोई उसकी इंसिडेंटल एक्टिविटी हो, चाहे वन टाइम की गई हो, चाहे क्लोजर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो, ऑल दीज विल फॉर्म द पार्ट ऑफ बिजनेस. इवन आपको पता है जीएसटी में कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी ऑल्सो डज नॉट वर्क, राइट. इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, म्यूचुअलिटी का मतलब है जैसे क्लब्स, इनकम टैक्स में तो हम देखते हैं ना, क्लब्स एटसेट्रा दे गेट सर्टेन स्पेशल गिवन सर्विसेज गिवन टू इट्स मेंबर्स. आप सेक्शन 28 में भी पढ़ते हैं पीजीबीपी में. बट हियर even if the club or an association is giving any services to its members for a consideration, it will also form part of the business. आगे जाके हम इसको schedule 2 में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. Now, what is course or furtherance of business? If I take the normal word meaning, dictionary meaning of furtherance, it means advancement. Course or furtherance of business means advancement of the business. Now, इसके ऊपर I have put in here a advanced ruling also, which is in the case of Coltech Polymers Private Limited. What was the ruling? I just go through the summary of it. Food expenses की रिकवरी कर रहे थे अपने कैंटीन से. द कंपनी वाज रिकवरिंग द फूड एक्सपेंसेस फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर कैंटीन फैसिलिटी. तो उन्होंने कहा ये भी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और ये भी आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा. सो इट मींस दैट recovery of food expenses is also the example of course or furtherance of business. Moving ahead, आगे चलते हैं. Now, पहला लेम हमने कौन सा डिस्कस किया? हमने यहाँ पे देखा था कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. फिर हमने कहा जी इट मस्ट बी फॉर अ कंसिडरेशन. सर टर्म कंसिडरेशन सेक्शन 2 क्लॉज 31 ने सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट defines what is a consideration. Consideration means includes, it is again in relation to supply of goods or services of both, includes any payment made or to be made. यानी it is covering, चाहे पेमेंट हो गई है चाहे पेमेंट अभी होनी है, यानी ड्यू बेसिस को भी कवर कर रहा है और रिसीट बेसिस को भी कवर कर रहा है. आपको पता है एडवांसेस इन जीएसटी आर आल्सो टैक्सेबल. ऑल्दो गुड्स के एडवांसेस को गवर्नमेंट ने डिफर कर दिया था, बट सर्विसेज का एडवांस आज भी टैक्सेबल है. सो एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, चाहे वो मनी में हो चाहे अदरवाइज. जो इसमें सबसे ज्यादा इश्यू चल रहा है इस टाइम पे, एडजस्टमेंट. मैंने उससे पैसा लेना था, उसने मेरे से लेना था. आई डिड बुक एंट्री, आई डिड द एडजस्टमेंट. Whether it will come into preview. So the definition of consideration says it is money or otherwise. It is not necessarily कि आपका मनी ही होना चाहिए. Consideration can flow in any form. Consideration in kind भी हो सकती है. Made or to be made, whether in money or otherwise. In sir, consideration can flow from whether by the recipient or by any other person. Recipient से भी flow कर सकती है या किसी और से भी. Example लेते हैं वाउचर्स के केस में. कई बार हमें वाउचर्स मिलते हैं, आप कहते हो जी मैं जा रहा हूं, मैं वहां जाके फ्री खा लूंगा. पेमेंट उसको कौन करेगी? कंपनी करेगी. सो दिस इज कंसिडरेशन होनी जरूरी है, चाहे उसको रेसिपिएंट दे रहा है या और कोई पर्सन दे रहा है. लेकिन अगर कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है, हमने कहा कंसिडरेशन कोई भी दे रहा हो, बट अगर वो कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी आ रही है, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट. सर याद रखिएगा यहाँ जो सब्सिडी है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कवर्ड है. सो अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट से या किसी और तरह की किसी बोर्ड से सब्सिडी आती है, सो वी हैव टू चेक कि वो क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी.
सो वो सिर्फ वही सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो भी कंसिडरेशन होगी दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, चाहे वो मनी में हो, चाहे वो इन काइंड हो, चाहे वो रेसिपिएंट से आ रही हो, चाहे वो और किसी पर्सन से आ रही हो, चाहे आ चुकी हो, चाहे आने वाली हो। सो इट सेज कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है, और कई बार हम कहते हैं एक्ट ना करना भी, अगर हमें उसका कोई पैसा मिलता है तो वो भी कंसिडरेशन है, तो वो भी बी पॉइंट यानी नॉन कम्पीट फी। हम सब ने पीजीबीपी में पढ़ रखा है, आप काम बंद कर दीजिए मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, आप ये चीज ना करिए। आप हल्दीराम में जैसे अपना स्टोर खोलना है, उसने स्मॉल वेंडर को कहा तुम ये काम बंद कर दो यहाँ पे, आई विल गिव यू अ सम ऑफ मनी। तो कोई काम करने से रोकना, जो अमाउंट दिया जाएगा, कोई देयर आर न्यूमरस एग्जांपल, नॉन कम्पीट फी या कोई पेनल्टी, डेमरेज, एनी एक्ट और फॉरबेरेंस, तो वो सारी भी हमारी कंसिडरेशन में कवर होगी। लेकिन अगर किसी ने कोई डिपॉजिट दिया हुआ है, so here I have put a definition in the diagrammatic form also. It says that कंसिडरेशन पेमेंट इन मनी भी हो सकती है, अदरवाइज भी हो सकती है, लेकिन इसमें सब्सिडीज नहीं आएंगी, और जब तक कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा आपकी सप्लाई नहीं बनेगी। एक्सेप्ट अभी हम शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ 4 केसेस हैव बीन गिवन जहां कंसिडरेशन नहीं है पर वो सप्लाई माना जाएगा, बट अदरवाइज जब भी आप देखें कि क्या इस चीज के ऊपर जीएसटी लगना है या नहीं लगना है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या कंसिडरेशन का एलिमेंट, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एलिमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है। तो कंसिडरेशन में, अच्छा हम बात कर रहे थे डिपॉजिट्स पे, अगर मैं डिपॉजिट्स पे आऊं, अगर आपने किसी को डिपॉजिट दिया हुआ है यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, अगर तो वो आपको रिफंड कर देता है, वो रिफंडेबल डिपॉजिट है, आपका काम ना करने पे, तो फिर तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो आपका डिपॉजिट एडजस्ट कर लेता है, तो जिस टाइम पे वो डिपॉजिट एडजस्ट करेगा उस टाइम पे वो उसकी कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 31 says. Now moving ahead, we were talking about the definition of supply. अब हम देखते हैं, हमने ये ए पार्ट डिस्कस किया कि बाय द पर्सन होना चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ऊपर वाले जो दिए हैं सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ये सब एग्जांपल्स है। अब इसके साथ में आ रही हूँ लिंब सी पे, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। हमने कहा था कि कुछ एक्टिविटीज तभी सप्लाई बनेंगी जब उनमें कंसिडरेशन होगा, लेकिन शेड्यूल 1 कुछ ऐसे 4 केसेस हमें बताता है 1-4 जिनमें की कंसिडरेशन नहीं होगा, फिर भी वो मेरी सप्लाई मानी जाएगी। नाउ देखते हैं 4 एंट्रीज में से पहली एंट्री पिक करते हैं। फर्स्ट एंट्री सेज परमानेंट ट्रांसफर, प्लीज मेरे साथ चलिएगा, परमानेंट ट्रांसफर, ये कोई टेम्परेरी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल बिजनेस एसेट्स का जहां आपने इनपुट लिया हो। सर शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 1 में सब कुछ होना चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए, अदर एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई भी होनी चाहिए, बट क्या मिसिंग है? सिर्फ कंसिडरेशन। इनमें कंसिडरेशन मिसिंग थी, इस वजह से ये सप्लाई नहीं बन रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने शेड्यूल 1 में डाल के चाहे कंसिडरेशन मिसिंग थी इनको सप्लाई बना दिया। नाउ हमने 2 टर्म्स यूज की, ट्रांसफर और डिस्पोजल। क्या डिफरेंस है? सर ट्रांसफर का मतलब होता है मूविंग समथिंग फ्रॉम वन हैंड टू अदर, देयर आर ऑलवेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पर्संस, बट उन्होंने यहाँ पे और वास्ट किया, डिस्पोजल भी कवर कर दिया। डिस्पोजल मतलब डिस्कार्ड कर देना, 2 पर्संस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक अगर आपने एक एसेट, मेरे पास कुछ पुराने कंप्यूटर्स पड़े थे, मेरे पास उनको रखने की जगह नहीं थी, मैंने उठा के उनको डिस्कार्ड कर दिया। अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगी, मैंने कुछ चीजें पढ़ी थी, कोई बुक्स पढ़ी थी, कुछ मैंने उनको बुक्स पे नहीं आऊंगी बिकॉज वी आर हियर रेफरिंग टू इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन टेकन। मेरा कोई पुराना कूलर पड़ा था ऑफिशियल पर्पस, अगेन बिजनेस एसेट, और मैंने उसको किसी को डोनेशन में दे दिया। तो ये सब सर इस एंट्री का कारण क्या था?
गवर्नमेंट कहती है जब आपने एसेट परचेज किया, आपने उसका इनपुट लिया, तो दैट इज व्हाई दे हैव पुट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन। आपने इनपुट ले लिया, आज आप उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हो, आप कहते हो जी मेरे को तो कोई कंसिडरेशन आई नहीं, मैं टैक्स किस पे दूं, अभी मैं वैल्यूएशन पे भी आऊंगी। तो उन्होंने कहा चाहे कंसिडरेशन आई या नहीं आई, इनपुट लिया था, मैं अगर इसको नटशेल में समराइज करूं, कहेगा जितनी देर यूज किया ना एसेट उतनी देर का आप इनपुट रख लो, बाकी जितना पीरियड बच गया है उसका इनपुट रिवर्स कर दो। एसेट की लाइफ ये 5 साल एज्यूम करता है जीएसटी, राइट? जब ये 5 इयर्स की लाइफ एज्यूम करता है, 5 साल की लाइफ एज्यूम करता है, तो 5 साल में से अगर मैंने उस एसेट को जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दिया, जल्दी ट्रांसफर कर दिया और कोई कंसिडरेशन भी नहीं आई, माइंड इट, अगर कंसिडरेशन आ गई तो फिर तो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू टैक्सेबल होनी है, जो वैल्यूएशन में पड़ेगी, जो पैसा आया उसके ऊपर टैक्स देना है। लेकिन अगर कंसिडरेशन नहीं आई तो भी टैक्सेबल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इसमें कंडीशन, अभी मैंने क्या कहा, आईटीसी लिया हो, गवर्नमेंट कहती है लिया है तो वापस दे दो, नहीं लिया तो वापस भी नहीं मांगेगी। तो अगर आपको आईटीसी एलिजिबल ही नहीं था तो भी एंट्री नंबर 1 नहीं लगेगी, या एलिजिबल था आपने लिया ही नहीं था तो भी एंट्री नंबर 1 नहीं लगेगी। और द वर्ड इज परमानेंट, हमेशा के लिए दे दिया, टेम्परेरी की बात नहीं कर रही हूँ। एग्जाम्पल आई हैव पुट इन donation of assets to NGO. Wherever possible, I have tried to put in certain examples of every topic so that for the better understanding of this subject. I'm trying my level best, sir, to speak in Hindi a bit. चलिए, donation of assets to NGO. अगर मैंने assets की donation दे दी, NGO को डिस्कार्ड कर दिए, ITC भी क्लेम किया था, GST लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी। और अगर मैंने ओल्ड बिजनेस एसेट डिस्कार्ड कर दिया, अभी मैंने एग्जांपल दिया, पुराने कंप्यूटर पढ़े थे मैंने, यस, पैसा नहीं आया तो भी सप्लाई है, जीएसटी लगेगा एंट्री नंबर 1 के अकॉर्डिंग। मैंने पुरानी कार डिस्पोज ऑफ की, बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कारण आपको पता है कार्स का आईटीसी डिसअलाउड है, तो मान के कि आपने कार का आईटीसी नहीं लिया, एज अ रिजल्ट ये आपके ऊपर प्रोविजन नहीं लगेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ जहां पे आपको आईटीसी अलाउड है, हायरिंग एक्सेट्रा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सीटर्स कितने हैं, आई एम टेकिंग ओल्ड कार है, आईटीसी नहीं लिया हुआ, क्योंकि आपने आईटीसी नहीं लिया तो आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। पुट टू यूज परमानेंट, पुट टू प्राइवेट यूज परमानेंटली। मेरे बिजनेस का एक एसेट था, फर्नीचर में मैं डील करती हूँ, या मेरा फर्नीचर ऑफिस का बिजनेस एसेट है, क्योंकि सर मैंने इसलिए एग्जांपल चेंज की कि मैं डील करती हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एसेट्स, कहीं बताया नहीं है। तो बिजनेस एसेट्स में क्या मेरी इन्वेंट्री आएगी कि नहीं, अब एक क्वेश्चन। नाउ अगर मैं वापस आऊं, पुट टू प्राइवेट, मेरे पास कोई फर्नीचर पड़ा था, मैंने सोचा नहीं अब ये ऑफिस नहीं रखना, इसको घर ले जाते हैं। अगर मैंने वो एसेट अपने प्राइवेट यूज में भी कर दिया तो क्या होगा? इट विल बी अ सप्लाई, जीएसटी एंट्री नंबर 1 में लगेगा। ceases to be a taxable person, आप कहते हो जी मैंने काम बंद कर लिया, अपने क्लाइंट को कह दीजिएगा। अगर आप क्लाइंट, सर फ्यू डेज बैक मेरे ना व्हाट्सएप पे क्वेरी थी, एक बंदा काम नहीं बंद कर रहा, सो क्यों? बिकॉज जब हम काम बंद करते हैं, we ceases to be a taxable person, permanent disposal, permanent transfer, so कंसिडरेशन नहीं भी आएगी तो भी वो सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा एंट्री नंबर 1 के अकॉर्डिंग। सो एंट्री नंबर 1 को मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया कि क्या क्या ट्रांसफर और डिस्पोजल जो है कहाँ कहाँ पे एग्जांपल जो उनकी एंट्री नंबर 1 में फिट हो सकती है। सर डिस्पोजल के ऊपर वैसे तो मैं आई पुट इन यहाँ पे एक एआर आई पुट इन सीएमएस इन्फो सिस्टम्स का एक केस लॉ था कि उनके पास एक पुरानी कैश कैरी वैन्स थी, तो उन्होंने कैश कैरी वैन्स को एज अ स्क्रैप सोल्ड कर दिया। सर अगर तो सेल किया तो फिर तो नॉर्मल कंसिडरेशन लग गई, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन भी कर दिया तो डिपेंड करता है क्या आपने उसका आईटीसी लिया था कि नहीं लिया था। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ सेड वैन इज नॉट अवेलेबल टू एप्लीकेंट। तो इस केस में अगर आप अपनी पुरानी कैश कैरी वैन भी अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हो और उसने उससे आपने एसेट लिया हुआ है, इनपुट लिया हुआ है, तो वो शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 1 में कवर हो जाएगा। अब
आप कहोगे वैसे तो वैल्यूएशन पार्ट आपका आना है, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंट्री को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे वो वैल्यू कैलकुलेट करेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम बिल बनाते हैं, जो वैल्यू बिल में होती है दैट इज वही हमारी वैल्यू बन जाती है, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू, अगर मैं सेक्शन 15 वैल्यूएशन को ध्यान में रखूं। लेकिन यहाँ तो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन है, मैंने तो उठा के फेंक दिए, मैंने किसी एनजीओ को डोनेट कर दिए। सो वो कहता है अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है, कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 लाख रुपया मेरा आईटीसी था, कितने साल लाइफ एज्यूम करता है? 60 मंथ्स यानी 5 इयर्स। वो कहता आपका एसेट 4 साल 6 महीने 15 दिन यूज हो गया था, तो कोई बात नहीं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 60, कितने मंथ्स रह गए? 5 मंथ्स। 5 महीने के लिए 8,330, यानी जितनी रिमेनिंग लाइफ उसकी रह गई है उसको कैलकुलेट कीजिए। उतना अमाउंट अगर आपका आईटीसी पड़ा है तो उसको रिवर्स कर दीजिए, नहीं तो उतना अमाउंट पे एन अमाउंट इक्वल टू कर दीजिए। और जो हमारा रूल है 44, उसमें क्लियर कट लिखा है कि ये कैलकुलेशन ईच हेड के लिए सेपरेटली होनी है। सो ऑल्दो मैंने इस एंट्री का आपको ये समझाना चाहे, आपने लाख रुपए का क्रेडिट लिया, आज आप उस एसेट को डिस्कार्ड कर रहे हो, गवर्नमेंट को कहते हो पैसे ही नहीं आए, मैं टैक्स क्यों दूं? गवर्नमेंट कहते जब लिया था तब आपने आईटीसी लिया था, आज जब आप उसको डिस्कार्ड करने जा रहे हो तो जितना आपको पैसे नहीं आए, पर जितना आईटीसी आज उसका रिमेनिंग लाइफ का पड़ा हुआ है, आप उतना आईटीसी या तो रिवर्स कर दीजिए या पे एन अमाउंट इक्वल टू कर दीजिए। नाउ अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? शेड्यूल 1, सप्लाई है, सप्लाई नहीं बनती क्योंकि कंसिडरेशन नहीं थी, बट फिर भी सप्लाई मानी जाएगी, राइट? कैसे मानी जाएगी? सर यहाँ पे ना मैंने कुछ अदर इश्यूज इसी एंट्री से रिलेटेड डाले हैं, शेड्यूल 2 से भी इसकी लिंकेज है। या जब हम अपने, एक सर्कुलर है कि अगर हम अपने मोल्ड्स, टूल्स, जॉब वर्कर को भेजते हैं तो उसको भी हम परमानेंट डिस्पोजल नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आप जॉब वर्क का प्रोसीजर करोगे तो आप मोल्ड्स, टूल्स, डाइस, जिग्स ये अपने जॉब वर्कर को दे सकते हो। और इसमें आई हैव पुट एन एग्जांपल कि बिजनेस एसेट्स जो हैं वो जरूरी नहीं गुड्स ही हो, बिजनेस एसेट सर्विसेज भी हो सकती हैं। एग्जांपल, अनएक्सपायर्ड राइट इन फ्रेंचाइजी, मैंने किसी को फ्रेंचाइजी का राइट परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया। सो बिजनेस एसेट्स कैन हैव वेरी वास्ट मीनिंग, इट कैन बी गुड्स, इट कैन बी सर्विसेज। नाउ अ क्वेश्चन मार्क इज वेदर इट इंक्लूड्स इन्वेंटरी और इट डज नॉट इंक्लूड। सो बिजनेस एसेट इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। ये थी हमारी एंट्री नंबर 1। अब हम आ रहे हैं शेड्यूल 1 की ही, यानी 4 पॉइंट्स हमने किए थे, अब हम सेकंड पॉइंट में हैं। 4 पॉइंट्स में से सेकंड पॉइंट कहता है अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विसेज अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को दी है कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, यानी सेकेंड एलिमेंट कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आज भी है, लेकिन क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है, तो हम उसको भी सप्लाई मान लेंगे। सर आपको पता है रिलेटेड पर्सन के ट्रांजैक्शन जहां भी हो, वेदर इट इज इनकम टैक्स, वेदर इट इज एनी अदर, वेदर इट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, ऑलवेज हमेशा गवर्नमेंट की आईज में रहती है, आर्म लेंथ प्राइस पे होनी चाहिए। सो सेम इज द केस ऑफ जीएसटी, सेम वाज द केस इन सर्विस टैक्स। तो उन्होंने कहा अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो उस केस में चाहे आपकी सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, सप्लाई मान लेंगे। किसको प्लग करना चाहा? पहले तो हम देखें रिलेटेड पर्सन। सर रिलेटेड पर्सन सेक्शन 15 में एक्सप्लेनेशन में डिफाइंड है। अब वो हम 48 में इनकम टैक्स में करते रहते हैं, रिलेटेड पर्सन ये है, रिलेटेड पर्सन ये है। सो फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ना, सारे सेक्शन 15 के रिलेटेड पर्सन को डायग्रामेटिक फॉर्म में डाल दिए। एबीसी लिमिटेड है, उसका एम्प्लॉई है, ये है। सो यू कैन गो थ्रू दिस थ्री स्लाइड्स जहां पे मैंने सेक्शन 15 के रिलेटेड पर्संस को डिस्क्राइब किया है, बट मोटा मोटा देख लेते हैं। डायरेक्टर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो गए, होल्डिंग सब्सिडरी हो गए, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली हो गए। सो दीज आर द रिलेटेड पर्सन। मेरा और रिलेटेड पर्सन में जरूरी नहीं है पर्संस नेचुरल पर्संस या लीगल पर्संस भी इंक्लूडेड है, और मेरा सोल सेलिंग एजेंट भी इंक्लूडेड है। तो ये डेफिनेशन पार्ट था। 2 टर्म्स यूज की गई हैं इसमें, एक टर्म यूज की गई है रिलेटेड पर्सन और एक टर्म यूज की गई है डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन तो हमने देख लिया, व्हाट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन?
सर डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 में डिफाइंड है, दो क्लॉजेज है 25(4) और 25(5). सिंपली सेइंग, मेरी कोई और ब्रांच और कोई एस्टेब्लिशमेंट, चाहे सेम स्टेट में हो चाहे दूसरी स्टेट में हो, जिसके पास अलग से जीएसटी नंबर है, यानी हमारा पैन तो एक है लेकिन हमारे जीएसटी नंबर अलग अलग है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। एग्जाम्पल, आई एम हेयर इन पानीपत और मेरा कोई यूनिट सूरत में लगा हुआ है। ऑफ कोर्स आपको पता है जीएसटी इज अ स्टेट बेस्ड टैक्स, स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन। बेसिकली हर स्टेट में आपको एक अलग रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो जब आप वहां का, आपके पास सूरत का नंबर अलग होगा, यहाँ का नंबर अलग होगा, सो एज अ रिजल्ट आप दोनों क्या हो? डिस्टिंक्ट पर्सन। पैन एक है बट नंबर अलग अलग है। सो आई हैव पुट एन एग्जांपल आल्सो हियर, बट मैंने आपको वैसे भी बता दिया है कि अगर आपके, तो वो सारे क्या है? मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब क्या इसका मतलब, मैं अगर आपको बोलूं कंसिडरेशन नहीं भी आई, मैंने अपनी पानीपत की ब्रांच से सूरत की ब्रांच को गुड सप्लाई की हूं, तो मैं इन एग्जांपल ले लेते कि मैं प्रोप्राइटरशिप ही हूं, मैंने अपना ही वहां पे सूरत में कोई काम कराना था कपड़े का, मैंने वहां पे वो भेज दिए। Panipat is more known for bed sheets etc. ना, I have certain clients, so they get the material from Panipat regarding that. So वो उन्होंने वो बेड शीट्स पे या किसी भी काम के लिए, मैंने उसको किसी वर्क के लिए सूरत भेजा, या किसी ज्वेलर ने भेजा अपने सूरत से कोई डायमंड्स वगैरह या कुछ पॉलिश कराने के लिए और समथिंग। तो जब आप अपने यहाँ से, अब आप अपने आप से तो पैसे लेंगे नहीं, आपने तो नॉर्मल ट्रांसफर करिए, बट वो ट्रांसफर सप्लाई मान ली जाएगी चाहे कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन में है। सो लॉ की इंटेंशन क्या थी? दिल्ली में उसकी एक ब्रांच है, पंजाब में उसकी दो ब्रांचेस है। सर दिल्ली और पंजाब की ब्रांच तो अलग अलग ही रजिस्टर होगी, लेकिन हो सकता है पंजाब की दो ब्रांचेस के पास भी जीएसटी नंबर अलग अलग हो। सो एज अ रिजल्ट अगर इनका नंबर अलग अलग होगा तो ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे और सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए। बट अगर इनका एक ही जीएसटी नंबर होगा तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बनेंगे, लेकिन दिल्ली और पंजाब तो हमेशा ही डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। नाउ कवर क्या करना चाहती थी इसमें? गवर्नमेंट कवर करना चाहती थी स्टॉक ट्रांसफर्स। दे वांटेड टू ब्रिंग इट इनटू द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी कि अगर आप अपनी कोई भी गुड्स यहां से यहां अपने ब्रांच को या अपने ही हेड ऑफिस को ट्रांसफर करते हो तो हम उसको जीएसटी में सप्लाई मान लेंगे, चाहे कंसिडरेशन फ्लो नहीं करता है। वैल्यूएशन भी बता दी। वैल्यूएशन सर अब डिटेल में करोगे व्हेन यू विल हैव, बट इससे वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज होता है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने इसमें दिया है वैल्यूएशन में कि अगर आप सामने वाले को फुल आईटीसी मिल जाना है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, whatever value you are taking to remove, to bring it down the working capital blockage. But अब इसमें दिक्कत क्या आई? दिक्कत आई इश्यूज। सर गुड्स के लिए तो आप मूवमेंट ट्रेस कर सकते हो, हुआ, बट व्हाट अबाउट सर्विसेज, which is a big issue right now, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रॉस चार्ज का पिक्चर में आता है। सो इश्यूज क्या है? ब्रांच ने स्टॉक ट्रांसफर की बिना कंसिडरेशन की कवर्ड हो गया। एग्जांपल मैंने दिया, एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को की, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी। जैसे ये एग्जांपल, सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नहीं होगी, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन हुई विद इन द स्टेट तो सप्लाई बन जाएगी। और अगर इंटर स्टेट ब्रांचेस हैं दिल्ली और पंजाब तब तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो ये वाले इश्यूज। अब इसमें डिबेटेबल इशू है एलोकेशन ऑफ सर्विसेज। सर मेरा सीईओ बैठा है हेड ऑफिस में, काम तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है, मेरी ब्रांच के लिए भी कर रहा है, तो क्या मुझे क्रॉस चार्ज में एलोकेशन ऑफ सर्विसेज का भी एलिमेंट इंक्लूड करना होगा, एक से जो दूसरी ब्रांच को जा रही है? नाउ द अंडरलाइंग क्वेश्चन व्हिच कम्स इनटू इट इज व्हाट इज द अंडरलाइंग ऑफ दोस सर्विसेज। सर वो सर्विसेज अगर सैलरी है, आप सीईओ को क्या पे कर रहे हो? सैलरी। सैलरी वैसे जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, तो क्या मुझे क्रॉस चार्ज करते हुए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को मान के कि सर्विसेज सप्लाई होनी है या नहीं होनी है, क्या मुझे सीईओ की सैलरी वगैरह इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है? बड़ा इजी एग्जांपल देती हूँ। प्रैक्टिकली हम सोचते हैं कि हमारे शायद छोटे क्लाइंट्स में ये कॉन्सेप्ट ना लगे, इट इज मेंट फॉर बिग कंपनीज,
लेकिन मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दी ना कपड़े की, कि मेरा एक क्लाइंट है जो यहाँ से माल अपनी सूरत ब्रांच को भेजता था, वहां से कपड़े का काम कराता है। अब जब मैं ऑडिट फी का बिल रेज करती हूँ, मैं उसके किस नंबर पे करूँ, पंजाब के या सूरत के? सो दीज आर द क्वेश्चंस। उस केस में एक बिल आया और दो, तो दीज आर द वेरियस टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व इन इट, जहां पे क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर। क्रॉस चार्ज इसी वजह से आता है। इवन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन द इंटर रिलेटेड पर्सन इज कवर। पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि कंसिडरेशन तो इन्वॉल्व ही नहीं है। Identification of transaction become difficult. It can be from branch to head office or from head office to branch. So इसके ऊपर एक कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स की बहुत फेमस AARB है, जिसमें उन्होंने कहा कोई भी जो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस होंगे टू अदर द रजिस्टर्ड यूनिट, हम उस सबको सप्लाई मानेंगे। यानी गुड्स भी कवर कर दिए और सर्विसेज भी कवर कर दिए। तो इसमें उन्होंने इसको क्रॉस चार्ज के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई किया। अब सर ये मैंने आपको लिंकेज बताई है, क्योंकि शेड्यूल 2 में आपको पता है सैलरी बाहर है। सो द अंडरलाइन क्वेश्चन कम्स इज कि अगर जो आपस में ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, जब हमने उसका क्रॉस चार्ज करना है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को या एक हेड ऑफिस से दूसरे ब्रांच को, अगर कोई सर्विसेज का यूजेज है तो उसको कैसे डील करना है। नाउ मूविंग अहेड, इसी एंट्री में हमने कहा था रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी है। सो एंट्री नंबर 2 क्योंकि ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्संस को कवर करती है, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी कवर कर लेती है। एंड सो मेनी क्वेश्चंस अराइजेस फ्रॉम इट। व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? क्या कहता है ये? आपको पता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दे आर रिलेटेड पर्सन सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग। अगर कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज देगा इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, सर वो तो सैलरी हो गई, शेड्यूल 2 ने बाहर कर दिया। लेकिन अगर कुछ एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जा रहा है या एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को आ रहा है गिफ्ट्स, तो उन्होंने कहा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, क्योंकि गिफ्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड गिफ्ट? सैलरी मेरे CTC का पार्ट होती है। सैलरी वो है जिससे कि मैं कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकती हूँ, हाँ जी मेरा राइट है मुझे दीजिए। गिफ्ट इज जो मेरा राइट नहीं है। गिफ्ट वो है जो मुझे बर्थडे पे दे दिया, दे ना दे एम्प्लॉयर की मर्जी है। सो ये गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज है जिसपे इन्होंने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि व्हाट इज गिफ्ट, ऑल्दो देयर आर न्यूमरस कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व्ड इन इट। गिफ्ट अगर वो 50,000 की वैल्यू तक है, अब मैं आपको लेके आती हूँ प्रोवाइजो पे। प्रोवाइजो क्या कहती है? इसी की, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए तक है तो हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं मानेंगे। सर मैंने स्टार्टिंग में कहा था, याद रखना कैश गिफ्ट मनी जो है ना वो गुड्स है ना वो सर्विसेज। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश गिफ्ट देगा तो वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने कोई वॉशिंग मशीन ले दी, कोई AC ले दिया और अगर उसकी वैल्यू 50,000 रुपए तक है तब वो इसका पार्ट बनेगा। लेकिन 50,000 रुपए से ऊपर है तो वो टैक्सेबल बन जाएगा। क्यों? आपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में अगर एम्प्लॉयर ने कोई गिफ्ट दिया विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी, जो सैलरी का पार्ट नहीं है बट 50,000 से ऊपर है, तो वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाएगी अगर गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर है। अब ऐसे ही आती थी बात कैंटीन सर्विसेज की। कैंटीन सर्विसेज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता था कि भाई आओ खाना खाओ, और वो सारे साल में अगर मैं देखूं, सर ये जो 50,000 की लिमिट है ना, ये पर एम्प्लॉय इन अ फाइनेंशियल ईयर है। एक साल में हर एक एम्प्लॉय के लिए 50,000 है। तो कैंटीन सर्विसेज जब वो देता था, एक तो टैक्सेबल भी हो जाता था और दूसरा उसको ITC भी नहीं मिलता था फूड का, क्योंकि आपको पता है 17(5) में वो नेगेटिव लिस्ट में है, जो आप आगे करेंगे जब आप ITC पढ़ेंगे कि फूड इज इन नेगेटिव लिस्ट। लेकिन गवर्नमेंट ने वहां अमेंडमेंट कर दी और कहा अगर आपको फूड देना ऑब्लिगेटरी है तो हम आपको उसका क्रेडिट अलाउ कर देंगे। सो यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने डबल टैक्सेशन अवॉइड कर दी। लेकिन अगर गिफ्ट्स हैं, आपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया,
अब आपको ना तो आईटीसी मिलेगा क्योंकि 17(5) में गिफ्ट्स का आईटीसी डिसअलाउड है, और ऊपर से जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा. So there are double sort of transaction, double taxation is included somehow. Although there are views in favor and legal favor and as well as against it. Now, notice pay recovery. इसी एंट्री में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया या एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला गया. आपको पता है आजकल क्लॉजेस इन्वॉल्व होते हैं. अगर नोटिस पे रिकवरी एम्प्लॉयर ले रहा है एम्प्लॉय से, तो इवन टैक्स कैन बी डिमांडेड ऑन इट. सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जो ट्रांजैक्शन है उनको हमें इन जीएसटी हैज टू बी कंसिडर्ड इन देम. सो इसमें उन्होंने कहा अगर कोई, हमने देखा ब्रांचेस के बीच में स्टॉक ट्रांसफर्स ऑफ गुड्स और द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज ऑल आर कवर्ड, चाहे कोई कंसिडरेशन चार्ज हो चाहे ना हो, रिलेटेड पर्संस के बीच में. बट सर एंट्री नंबर 2 बहुत वास्ट हो गई जब उन्होंने रिलेटेड पर्संस को कवर कर लिया. लेट्स सपोज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय ब्रदर इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. हम दोनों ने, और मैंने उससे कोई एडवाइस ले ली, वो भी यहाँ कवर हो. सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने अपने काम से रिलेटेड उससे एडवाइस ली है, और उसने, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने जो मुझे एडवाइस. सर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू, लेने वाले के नहीं, देने वाले, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर उसका काम है, अगर उसका बिजनेस है, तो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा. मैंने बोला वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ये वो भी ट्रांजैक्शन कवर करेगा, लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन का इंटेंट नहीं था. ऑल्दो इसका वर्डिंग्स बहुत वास्ट हो गई, दे वांटेड टू कवर ब्रांच ट्रांसफर्स, इसमें सर्विसेज भी कवर्ड हो गई, इसमें हर तरह की रिलेटेड पर्सन की ट्रांजैक्शन, वो आर्म लेंथ प्राइस का कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे. All sort of transactions are got covered. एंट्री नंबर 2 बहुत वास्ट हो गई, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बहुत इशू आ रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइजो जो है 50,000 रुपीज की इन अ फाइनेंशियल ईयर दे दी. अभी हमने 2 एंट्रीज डिस्कस की हैं शेड्यूल 1 की. अब हम आएंगे थर्ड एंट्री पे, शेड्यूल 1 के, प्रिंसिपल एजेंट. ये भाई साहब प्रिंसिपल है, ये हमारे एजेंट साहब है. प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए, जाओ जाके बेचाओ. तो गवर्नमेंट कहती है इससे सर, जब गुड्स इससे इसको जाते हैं तो वो बिना कॉस्ट एलिमेंट, बिना ट्रांजैक्शन, बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंसिडरेशन जाते हैं. भाई मैं तेरे को ना गुड्स भेज रहा हूँ 50,000 के, तो प्लीज मेरा माल बेच दे. तो उन्होंने कहा हम इसको भी, चाहे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसको आपकी सप्लाई में ऐड किया जाएगा. और जब एजेंट भी प्रिंसिपल को, समझ लीजिए अगर तो ये सेलिंग एजेंट है तो प्रिंसिपल एजेंट को देगा, और अगर ये प्रोक्योरमेंट एजेंट है, ये माल खरीदता है, खरीद के ये इसको देगा. तो उन्होंने थर्ड एंट्री जो कवर की शेड्यूल 2 में, वो प्रिंसिपल एजेंट को की कि हम आपकी सप्लाई मान लेंगे प्रिंसिपल और एजेंट की, अगर आपके जो प्रिंसिपल टू एजेंट और फ्रॉम एजेंट टू प्रिंसिपल सप्लाई मानी जाएगी. लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल एजेंट कवर है, यहाँ पे जॉब वर्कर कवर्ड नहीं है. अभी जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर आपके साथ डिस्कस करूंगी तो हम उसमें एग्रीगेट टर्नओवर में भी देखेंगे कि जॉब वर्कर के केस में वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है. सो मूविंग अहेड, हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल एजेंट. सर प्रिंसिपल एजेंट में गवर्नमेंट ने 2 सर्कुलर इशू किए हुए हैं. जब हम रजिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे तो प्रिंसिपल एजेंट के केस में मैं आपके साथ फुल वो सर्कुलर इन डेप्थ डील करूंगी, राइट? क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है प्रिंसिपल एजेंट में, जैसे LIC एजेंट्स एटसेट्रा. तो हम देखेंगे क्या वो इस क्लॉज में कवर होंगे कि नहीं होंगे, इनवॉइस किसके नाम पे आ रहा है, उसकी क्या रेलेवेंस है, वो सारी चीजें हम इसमें कंसिडर करेंगे. बट फॉर द टाइम बिंग इट सेज प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, जो भी गुड सप्लाई होंगे चाहे वो कंसिडरेशन के बिना है, बट हम उसको सप्लाई मान लेंगे. लास्ट एंट्री शेड्यूल नंबर 1, इंपोर्ट ऑफ सर्विस. गवर्नमेंट ने कहा, अगर अब मैं यहाँ पे 2 चीजें लिंक करूंगी, मैं दोबारा से सेक्शन 7 पे वापस आती हूँ. सेक्शन 7 जिसमें हम सप्लाई पढ़ रहे थे, उसमें बी क्लॉज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज, गुड्स नहीं, फॉर अ कंसिडरेशन. अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, चाहे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी हो,
बट अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो तो वो सप्लाई माना जाएगा। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 7(1)(b) को भी पकड़ के और 7(1)(c) को भी पकड़ के, शेड्यूल 1 में भी इंपोर्ट आ रही है एंट्री नंबर 4 में। सो हमें इन दोनों को कंबाइंड रीड करना होगा। अब इन दोनों की कंबाइंड रीडिंग का मतलब क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अब मैं पहले आपको कंबाइंड रीडिंग बताती हूँ, देन वी विल कम टू इट। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आई। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन लॉ में आईजीएसटी एक्ट में बहुत क्लियरली दी गई है, जहां प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर किया जाएगा टू डिटरमाइन वेदर इट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और नॉट, जो कि आप जब प्लेस ऑफ सप्लाई करोगे तो आप डिटेल में डिस्कस करोगे। ये आर्किटेक्ट है, ये इसका ब्रदर है, इसने इसको सर्विसेज दी ए का हाउस बनाने के लिए और अपने क्लाइंट का ऑफिस बनाने के लिए। उन्होंने कहा चाहे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी हो तो भी सप्लाई माना जाएगा। अब देखते हैं कैसे। अगर मैं 7(1)(b) और 7(1)(c) को शेड्यूल 1 को अगर मैं कंबाइंड रीड करूं तो ये क्या कहता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब पहले देखते हैं विद कंसिडरेशन है कि विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन है और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहे हो चाहे ना हो। 7(1) भी यही कहता था, सप्लाई है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस चाहे हो चाहे ना हो। यानी अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो ए क्या आर्किटेक्ट का ब्रदर है, ये ने अपना हाउस बनाया और कंसिडरेशन ली। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई, चाहे मैंने अपना घर ही बनाया है, बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, वो आर्किटेक्ट भी नहीं है, उसने वैसे ही सप्लाई कर दी है, तो भी उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो मुझे देखना पड़ेगा कि रिलेटेड पर्सन है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो ही सप्लाई बनेगी। यानी अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन हुई है, विदाउट कंसिडरेशन हुई है और वो पर्सन मेरा रिलेटेड नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं बनेगी। सो ये जो चार्ट आपके सामने है, इट गिव्स अ पिक्चर कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर विदाउट कंसिडरेशन हो और रिलेटेड पर्सन से ना हो तो वो सप्लाई नहीं बनेगी। बाकी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन के साथ है तो चाहे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एलिमेंट ना भी हो वो सप्लाई बन जाए। सब पहले केस में तो कंसिडरेशन भी है, कोर्स और फर्दरेंस सप्लाई है। विद कंसिडरेशन नॉट, हमने अभी पढ़ा 7(1)(b) कहता है कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी नहीं है, तो भी सप्लाई है। अब विदाउट कंसिडरेशन यानी मैं शेड्यूल 1 पे आ गई। शेड्यूल 1 ने कहा रिलेटेड पर्सन है, कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो वो सप्लाई बनेगी। अदर केसेस में अगर वो रिलेटेड पर्सन नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं है, तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो शेड्यूल 1 जो था मेरा वो इन्हीं चीजों के साथ डील करता था कि कंसिडरेशन नहीं है पर फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा। कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, मैं सप्लाई की डेफिनेशन पर ही वापस चलती हूँ। तो सप्लाई क्या थी? हमने सप्लाई के पार्ट, सप्लाई इज माय टैक्सेबल इवेंट। हमने कहा सब तरह की सप्लाई है, दो एलिमेंट होने चाहिए, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन होना चाहिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा। शेड्यूल 1 कहता है कईयों में कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो सप्लाई बन जाए। सर 1 डील्स विद सप्लाई। अब यहाँ पे आई अमेंडमेंट। पहले इन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन में शेड्यूल 2 को कवर किया था, जबकि शेड्यूल 2 सिर्फ ये बताता है कि गुड्स मानू के सर्विस मानू। तो इसका मतलब अगर वो सब सेक्शन 1 में सप्लाई बनेगा तो सब सेक्शन 2 में देखना कि क्या वो गुड्स है या सर्विसेज। तो शेड्यूल 2 सिर्फ इतना बताता है कि ये ट्रांजैक्शन गुड्स है या सर्विसेज, ये नहीं बताता कि क्या वो सप्लाई है या नहीं है। वो हमें बताता है सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3। सो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 ही हमें बताता है। सो दैट इज व्हाई दिस अमेंडमेंट केम, जिसमें उन्होंने शेड्यूल 2 को बाय द अमेंडमेंट एक्ट बाहर कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ ये बताता है अगर कोई एक्टिविटी सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई बन जाएगी तो क्या वो गुड्स है या सर्विसेज। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन सर। अब इसमें गवर्नमेंट ने इसको कैसे टेकअप किया है? शेड्यूल 2
शेड्यूल 2 सर इतनी डेप्थ में, ड्यू टू द paucity of time I cannot take the each and every transaction of schedule 2 in depth, but will be giving you a few ideas about how the schedule 2 is there. ट्रांसफर कहता अगर तू टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर कर दिया तो सम प्लीज अप्लाई सम कॉमन सेंस आल्सो, कि अगर मैंने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया तो क्या बनेगा, गुड्स बनेंगे। अगर मैंने सिर्फ राइट टू यूज दिया है, ट्रांसफर टाइटल नहीं किया, तो वो क्या बनेगा, सर्विसेज बनेगा। हायर परचेज, लीजिंग, अगर आप इसमें कहते हो जी मैंने तो सिर्फ तुम्हें 4 साल के लिए ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, तो क्या बनेगा, सर्विस। लेकिन अगर मैं कहती हूँ 5 साल यूज कर लो, 5 साल बाद मुझे इंस्टॉलमेंट देते जाओ, 5 साल बाद एसेट तुम्हारा, यानी अगर मैंने ये कह दिया कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास हो जाएगी फ्यूचर डेट पे, तो वो क्या बन जाएगा, गुड्स बन जाएगा। सेकेंड एंट्री पे आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने पहले कहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी कभी गुड्स नहीं होगा, तो यही चीज यहाँ पे आ रही है। वो कहता है लैंड एंड बिल्डिंग के आपने लीज, टेनेंसी राइट्स, ईजमेंट, कोई लाइसेंस दिया है, तो वो सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। आप कोई लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी करते हो, कमर्शियल रेंटिंग करते हो, तो वो भी एक सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सेकेंड, जॉब वर्क, अगर आप थर्ड एग्जाम्पल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस जो है उसकी एग्जाम्पल है जॉब वर्क। अगर आप किसी के और के गुड्स पे प्रोसेस या ट्रीटमेंट लगाते हो, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सर सी द टेक्निकलिटीज, क्यों उसने कहा ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, क्यों इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आप देखो जॉब वर्कर कहता है मैं धागा अपने से लगाता हूँ, बटन अपने से लगाता हूँ, सिप्पी सितारे अपने से लगाता हूँ, और कुछ चीजें वो ऐड करता है, कोई स्पेयर पार्ट्स ऐड करता है, उसको ठीक करता है। तो उन्होंने कहा अगर आप कोई जॉब वर्क करते हो तो हम गुड्स को मेन नहीं मानेंगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाएगा। आपको उसको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है कि मटेरियल कितने का है, और वो फॉर एग्जांपल ज्वेलर्स के केस में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कन्नी ऐड करते हैं, थोड़ा सा पीस ऐड करते हैं, तो उस सारे को जब आप कोई जॉब वर्क कराओगे तो उसको हम क्या मानेंगे, गुड्स नहीं मानेंगे, सर्विसेज ही मानेंगे। नाउ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट आपका शेड्यूल 1 की एंट्री नंबर 1 से भी रिलेटेड है, जहां हमने कहा था परमानेंट ट्रांसफर। तो उन्होंने कहा अगर कोई भी बिजनेस के एसेट्स ट्रांसफर होते हैं या डिस्पोज ऑफ होते हैं, और अगर वो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सप्लाई बन गए, तो उनको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को टेम्परेरी यूजेज के लिए दे दिए, प्राइवेट यूज के लिए दे दिए, सर आजकल बैंक ऑडिट्स चल रहे हैं, बहुत सारे मेरे को क्वेरीज आती है, बैंक ऑडिट्स में उन्होंने लैपटॉप अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है, या प्राइवेट कंपनीज के केस में लैपटॉप अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है। तो अगर आप किसी को प्राइवेट यूज के लिए थोड़े टाइम के लिए देते हो तो इट विल बी टेकन एज सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट इज, अगर आपने किसी को गुड्स दे दिए, पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, हमें पहले भी पढ़ा था अगर आप सीज कर जाते हो टैक्सेबल पर्सन के लिए तो वो सप्लाई बनता था शेड्यूल 1 में, तो उस केस में भी उसको गुड्स माना जाएगा। द गुड्स जो उसके एसेट्स होंगे, अगर वो ट्रक ट्रांसफर करेगा दैट इज डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें उन्होंने गोइंग कंसर्न को कवर नहीं किया। क्यों सर? एग्जम्पशन आई हुई है गवर्नमेंट की कि अगर आप एंटिटी को एज अ होल ट्रांसफर कर दोगे, एग्जाम्पल फादर की डेथ होने पे बेटे को बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, अगर उसको आप गोइंग कंसर्न की तरह कर रहे हो, अमेलगमेशन में कर रहे हो, डीमर्जर में कर रहे हो, so in सब केसेस में ड्यू टू द एग्जेम्पशन बाय द गवर्नमेंट विच इज द पार्ट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, जो एग्जेम्पशंस में पढ़ोगे उसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। सर इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्लम सेल के रिगार्डिंग। स्लम सेल का कोई भी कॉन्सेप्ट जीएसटी में नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर रहे हो, आप एक प्लांट को, पूरे प्लांट को ऑल विद इट्स ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट किया गया है। और इसके ऊपर राजश्री वालों की राजश्री की एक एआर भी है जो कहता है इवन अगर आप एक प्लांट का पूरा एक यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो, मेरे 4 प्लांट्स है, मैं एक यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो भी इसको गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन का पार्ट माना जाएगा। So, अगर आप बिजनेस ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो उसको गुड्स मानना है या सर्विस, एंट्री नंबर 4 हमें ये बताती है। नाउ कम्स द एंट्री नंबर 5। क्रक्स बताऊंगी इस एंट्री का,
सर इमूवेबल प्रॉपर्टी खुद कवर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम उसकी रेंटिंग करते हैं तो उसको सर्विस माना जाएगा। वेरी वैलिड, गुड्स है ही नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स हो ही नहीं सकते, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। कंस्ट्रक्शन, वो कहते अगर आप किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे, except where entire consideration received after issuance of completion certificate। अगर मेरा कोई फ्लैट रेडी है और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, आजकल लाइट और वाटर के कनेक्शन के थ्रू कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है उसके बाद आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो यहाँ कवर्ड नहीं है, हम इसको शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले 1 रुपया भी आपने सामने वाले से ले लिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा। फर्स्ट ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों से पहले आपने कोई होली और पार्टली कोई कंसिडरेशन ले ली। फॉर एग्जांपल दिल्ली में जीके में कुछ फ्लैट्स वगैरह है या जो इनके आते हैं, वो क्या करते हैं कंसिडरेशन पार्ट्स इंस्टॉलमेंट्स में ले लेते हैं, दैट विल गेट कवर्ड इनटू जीएसटी। बट पूरा फ्लैट कंप्लीट होने के बाद, ऑक्यूपेशन के बाद या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद अगर आप उसको सेल करोगे उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगेगी, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ सप्लाई मतलब जीएसटी में तो कवर्ड नहीं है, बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें, योर कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, अगर आप उसको किसी को ट्रांसफर टेम्परेरी ट्रांसफर करो या यूज परमिट करो, ऑल दैट विल बी सर्विसेज। सॉफ्टवेयर्स आर कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ सर्विसेज। सर इसमें मैं कहूंगी जो आपके पैकेज्ड सॉफ्टवेयर्स है, जैसे आप जो प्रोक्योर करते हो, दैट शुड बी गुड्स। बट अगर आप कोई कस्टमाइजेशन कराते हो, अडेप्टेशन कराते हो, अपग्रेडेशन कराते हो, ऑल दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सर्विसेज। किसी को एक्ट करने से रोकना, नॉन कम्पीट फी, लिक्विडेटेड डैमेजेस, पेनल्टीज, ऑल दोस फॉर्म पार्ट ऑफ सर्विसेज। If you give any rights to use an asset to anyone, all that will form part of services। तो हम देख रहे हैं शेड्यूल 2 हमें बता रहा है क्या गुड्स है और क्या सर्विसेज है, प्रोवाइडेड वो सप्लाई की डेफिनेशन को पूरा करते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज विच टॉक्स अबाउट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2119 ने डेफिनेशन ही चेंज कर दी जीएसटी में। इन्होंने कहा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही होगा। सो बहुत सारे इश्यूज है इसमें, एग्जांपल जैसे मैंने डाला सोलर पावर प्लांट, various AARs have held that solar power plant is an immovable property। तो अगर तो मैं किसी ट्रक को रिपेयर करती हूँ तो वो किस में जाएगा, कॉम्पोजिट सप्लाई में, क्योंकि उसमें स्पेयर्स भी लगते हैं और उसमें सर्विसेज भी होती है। लेकिन अगर मैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिपेयर करूंगी सो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी तो ही वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं होगी सो दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। दैट वी हैव टू सी वेदर इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई और इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। सिमिलरली हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं खाना भी आ रहा है और वो सर्विस भी दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट कह दिया फूड और एनी अदर आर्टिकल ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन जो होगी या कोई भी ड्रिंक होगा अदर देन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो वो सब सर्विस बनेंगे। सो इसीलिए जब रेस्टोरेंट का बिल होता है वो 5% का रेट है और वो सर्विसेज का पार्ट माना जाएगा, उसमें हम गुड्स नहीं देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक 28% पे टैक्सेबल है, नो, हम देखेंगे इट इज द पार्ट ऑफ restaurant who is serving there, who is providing the services there, so हम उसको रेस्टोरेंट में कवर करेंगे, पार्ट ऑफ सर्विसेज मानेंगे। एंड लास्ट मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी नहीं है जीएसटी में, तो वो कहते हैं कि अगर आप अपने कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देगी फॉर कैश और फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, so that will form part of the services।
अब हम कहाँ थे? शेड्यूल 2 पे। शेड्यूल 2 ये नहीं बताता गुड्स की सप्लाई है या नहीं, वो बताता है बन गई सप्लाई, अब देखो गुड्स है कि सर्विसेज है। शेड्यूल 1 बताता था सप्लाई बनेगी। अब आ गया नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिम्ब ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ने कहा कि इसको सप्लाई को कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि सारी चीजें पूरी करेंगी सप्लाई की, बट फिर भी हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। शेड्यूल 3 क्या बताता है? हम इनको सप्लाई नहीं मानेंगे। बहुत बहुत इजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, हम देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक। शेड्यूल 3 कहता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय मैंने पहले बताया, सैलरी इन कोर्स और रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो कवर्ड नहीं होगा, वो सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विसेज रेंडर करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पंचायत करते हैं, तो नहीं होगा। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन, जो अपनी पोस्ट के कारण कर रहे हैं, कोई चेयरपर्सन है, कोई मेंबर है, डायरेक्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर वो कोई सर्विसेज रेंडर करेगा तो इसमें कवर्ड नहीं होगा। फ्यूनरल, ब्यूरल, सेमेटरी, इनकी सारी जो डेथ से रिलेटेड सर्विसेज है उनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल ऑफ लैंड, सर अभी हमने शेड्यूल 2 में पढ़ा था, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, ना सॉरी गुड्स नहीं है, हमने कहा था सर्विसेज में पार्ट हो गई, क्योंकि जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, उन्होंने स्पेसिफिकली बाहर निकाल दिया। अगर आप लैंड सेल करेंगे तो वो सर्विसेज नहीं बनेगा, और अगर आप कोई बिल्डिंग सेल करेंगे और वो बिल्डिंग का सारा पैसा कंप्लीशन या ऑक्यूपेशन के बाद आ रहा है तो भी वो कुछ नहीं बनेगा। और शेड्यूल 2 ने हमें बता दिया कि अगर पैसा पहले आ गया या आपने अगर उसकी रेंटिंग कर दी तो वो क्या बनेगा? सर्विसेज बनेगा। तो बाहर किसने किया? शेड्यूल 3 ने। और जो रह गया वो गुड्स है कि सर्विसेज? वो सर्विसेज है, वो हमें शेड्यूल 2 ने बताया। एक्शनेबल क्लेम्स, याद है हमने गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन की थी, तब हमने कहा था इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, लेकिन डेटर्स एटसेट्रा इन एक्शनेबल क्लेम्स को बाहर कर दिया, इंश्योरेंस क्लेम्स को बाहर कर दिया। सर इतनी रेलेवेंस है और ये पॉइंट्स इतने डेप्थ में हैं कि on each and every point there is so many litigation, so many issues involved. For example, मैं अगर आपको कहूँ actionable claims, आपके क्लाइंट के गोडाउन पे फायर हो गई, इंश्योरेंस का, तो उसमें हमें वर्किंग कैसे करनी है, इंश्योरेंस क्लेम से आने वाले पैसे को कंसिडर करना है या नहीं करना है, all these things comes into picture. Actionable claims को सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर टैक्स है। तो जब आपको पता है आजकल लॉटरीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है या ऑथराइज करती है, तो 28% का टैक्स है, बट अदर एक्शनेबल क्लेम्स लाइक इंश्योरेंस क्लेम्स, डेटर रियलाइजेशन आर नॉट कवर्ड इन जीएसटी। स्टार्टिंग में बहुत लिटिगेशन थी, बहुत इश्यूज अराइज होते थे, हाई सेल्स को लेकर, मर्चेंट ट्रेडिंग को लेकर, बॉन्ड सेल को लेकर। गुड्स आ रहे थे चाइना से, अब तो वैसे चाइना से वायरस ही आ रहा है, पर चलो एनी हाउ वी आर स्टिल इम्पोर्टिंग और होप एवरीथिंग गेट्स टू, या हम किसी और कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हैं। मैंने चाइना से इंपोर्ट किया और मैंने उसको मलेशिया में सेंड कर दिया, या मैंने उसको यूके में, दुबई में सेंड कर दिया, वो गुड्स कभी इंडिया में एंटर ही नहीं किए, मर्चेंट ट्रेडिंग, टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट के कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं सर, वो कस्टम फ्रंटियर के बाहर माने जाते हैं। सो बॉन्ड सेल, इन बॉन्ड सेल, उसी वेयर हाउस से माल आया, बॉन्डेड वेयर हाउस में था, वहीं से वहीं डिस्पैच आगे बाहर चला गया, इंडिया में नहीं आया। हाई सेल्स, मैंने गुड्स इंपोर्ट किए यूके से इंपोर्ट करते हुए मैंने उसको मिस्टर एक्स, मैं हूं मिस्टर एक्स, मैंने मिस्टर वाई को कस्टम फ्रंटियर क्रॉस करने से पहले बेच दिया, और यहाँ पे क्लियरेंस करा रहे हैं मिस्टर वाई। तो जो एक्स और वाई के बीच में ट्रांजैक्शन हुई, हाई सी सेल्स, those are out of the preview of GST. So the main intent was कि अगर आपकी कस्टम क्लियरेंस होने से पहले जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, हाई सीज, इनबाउंड सेल्स, मर्चेंट ट्रेडिंग, वो सब बाहर रखी गई हैं फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। सो विद दिस हमारा जो पहला टॉपिक था व्हाट इज सप्लाई, तीनों शेड्यूल्स एंड हमारा चार्जिंग सेक्शन, दैट स्टैंड्स कवर्ड।
Now we will be moving. Sir, मैं second part registration I'm going to start. Is it okay? So queries जो हैं वो हम registration के बाद ले लेंगे. Hello. चलिए, considering the time constraint, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन का टॉपिक भी बहुत लंबा है, तो हम रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं इसमें. आप देखेंगे कि अभी तक जब 3 साल पूरे होने वाले हैं मेरे जीएसटी को, तो भी हम अभी यही सोच रहे हैं, यही लिटिगेशन चल रही है, मुझे रजिस्ट्रेशन भी कराना है कि नहीं कराना है. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट जगह पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है. सो इतने सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं. तो लेट्स हैव अ लुक. हम रजिस्ट्रेशन में कवर क्या करेंगे? सेक्शन 22 से. सर, कैन आई सी इट इन द चैट बॉक्स कि वेदर आपको प्रॉपरली आवाज आ रही है, सब चीज समझ आ रही है, कोई इश्यूज अदर देन द क्वेरीज फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक? माय स्पीड इज फाइन और सब चीजें ठीक है कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन में मुझे थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आई वांट कि मैं सारा कवर कर पाऊं आपके साथ रजिस्ट्रेशन का टॉपिक. चलो ठीक है जी, ऑल इज फाइन, सो दैट्स गुड. चलते हैं जी आगे. नाउ रजिस्ट्रेशन में कौन से प्रोविजन सेक्शन के लगते हैं, एक्ट के लगते हैं? सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस है, और रूल्स 8 से लेकर 26 तक रूल्स जो है रजिस्ट्रेशन के साथ डील करते हैं. क्यों जरूरत है रजिस्ट्रेशन की? सर, रजिस्ट्रेशन नहीं तो सब कुछ करना है. गवर्नमेंट से लीगल राइट लेने का, टैक्स कलेक्ट करने का और आईटीसी अवेल करने का. सर, क्यों ये मैंने मेंशन किया? आपको पता है इतने केसेस लिटिगेशन में है, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई या वो माइग्रेट नहीं हो पाए और वो रजिस्टर नहीं हुए या उन्होंने इग्नोर किया. अब वो चाहते थे, लेट्स सपोज जुलाई 2017 में जीएसटी आया, तो वो सोचते, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई दिसंबर 2017 में, तो वो चाहते थे जुलाई से लेकर दिसंबर तक का वो क्रेडिट ले ले. नहीं ले सकते भाई, कैसे ले लोगे परचेजेस का? आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे. 30 डेज का प्रोविजन है, बट उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते. सो रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप, टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी और आईटीसी अवेल करने के लिए भी. तो देखते हैं रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजंस है. ओके, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए डाला है कि एक्ट कितनी बार अमेंड हुआ है. सर, मैं नहीं पूछूंगी रूल्स कितनी बार अमेंड हुआ, क्योंकि वो तो शायद गिनती नहीं है जितनी नोटिफिकेशंस, जितने सर्कुलर, जितने प्रेस नोट्स, कितने एफएक्यूज, सो मेनी थिंग्स हैव कम इनटू जीएसटी कि अगर आप रोज भी पढ़ो ना तो भी अभी पूरा नहीं होगा. सो मेनी चेंजेस. अभी आपने देखा होगा, अभी एक डिसीजन आता है हाई कोर्ट का और देयर इज अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, ऑल्दो इट वाज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ the Finance Act 2020, but it is made effective. So the government is coming up with the changes with retrospective amendments and all, लेकिन एक्ट जो अमेंड हुआ है वो बस इतनी बार ही हुआ. और यहाँ जो मैंने आपका एक्ट डाला है वो फाइनेंस एक्ट 2020 के पास होने के बाद का डाला है. सो 2019 के फाइनेंस एक्ट में फाइनेंस एक्ट नंबर 2 जो आया था, सबसे पहले आया था सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने देखा जैसे 1A का चेंज किया गया, जो मैंने आपको बताया कि सप्लाई शेड्यूल 2 को सप्लाई से बाहर किया गया. और उसके अलावा फाइनेंस एक्ट नंबर 2 ऑफ 2019 आया, देन 2020, और एक अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ जिससे सेक्शन 168A इंसर्ट हुआ, जिससे कि ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दी गई. दैट इज द पार्ट ऑफ रीसेंट थिंग्स. ब्लैंकेट एग्जेम्पशन के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिससे कि कोविड-19 के चलते हुए कि गवर्नमेंट जो है एग्जेम्पशन दे सके, ब्लैंकेट एग्जेम्पशन. सो ये अमेंडमेंट इन एक्ट बस इतनी बारी हुई है. नाउ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22, अगर मैं पहले वर्ड्स एक्ट के पढ़ूंगी और आपसे पूछूंगी, एवरी सप्लायर, यानी रजिस्ट्रेशन किसको करानी है? सप्लायर को. shall be liable to be registered in the state or union territory from where he makes taxable supply of goods or services. सर, वैसे तो जीएसटी मेरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है,
लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन ओरिजिन बेस्ड है। जहां से सप्लायर गुड्स का या सप्लायर सर्विसेज का देगा सप्लाई, यानी जहां से गुड्स की मूवमेंट ओरिजिनेट होगी, जहां से सप्लाई ऑफ सर्विसेज की जाएगी, वहां पे रजिस्टर कराना है। कब कराना है? अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग वर्ड नहीं है यहाँ पे, 20 लाख से एक्सीड करती है। सो इसी चीज को आगे आपने देखा, पहले तो ये लिमिट थी 20 लाख और 10 लाख, अब एक नई लिमिट भी आ गई है 40 लाख। सो ये सारे सेक्शंस को आई हैव पुट इट इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म। सेक्शन 22 क्या कहता है? थ्रेशोल्ड लिमिट किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रीगेट टर्नओवर पे। अगली स्लाइड में हम देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 क्लॉज 6 में मेंशन्ड है। सर एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी सारी टैक्सेबल सप्लाईज आती हैं, सारी एग्जाम सप्लाईज आती हैं, एक्सपोर्ट्स भी आती है, इंटर, सर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम देख रहे थे ना, अब आपको पता है 5 करोड़ की लिमिट हो गई है 9C के लिए, या 9 के लिए 2 करोड़ की लिमिट है। 9 के लिए आज भी लिमिट 2 करोड़ है और 9C के लिए लिमिट 5 करोड़ है टर्नओवर की। सो जब हम वो टर्नओवर की लिमिट देखते हैं ना, तो ध्यान रखना कभी इनकम टैक्स से पिक मत कर लीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स में जब हम बैलेंस शीट्स कंबाइन करते हैं तो ब्रांच ट्रांसफर खत्म हो जाती है डेबिट और क्रेडिट में। लेकिन जब आपने जीएसटी लेना है, अभी अभी हमने पढ़ा शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 2 जो कहता था ब्रांच ट्रांसफर्स को भी इंक्लूड करना डिस्टिंक्ट पर्सन में सप्लाई मानी जाएगी। तो उन्होंने कहा सारी इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर्स आर आल्सो टू बी एडेड टू चेक द लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। अभी अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल और एजेंट सप्लाई मानी जाएगी। सो सप्लाई मेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एजेंट, अगर तुमने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई की है तो भी वो तुम्हारी टर्नओवर का पार्ट मानी जाएगी। लेकिन जॉब वर्क के लिए ऐसा नहीं है। जॉब वर्कर जो सप्लाई करेगा, सर मैंने गुड्स जॉब वर्कर को 1 लाख के सप्लाई किए, उसने जॉब वर्क 2500 का किया, तो सिर्फ 2500 जॉब वर्कर की टर्नओवर है। जो 1 लाख की गुड्स है वो जॉब वर्कर की टर्नओवर नहीं है। Whereas in case of principal और एजेंट, जो गुड्स 1 लाख के प्रिंसिपल एजेंट को ट्रांसफर करता है वो पूरी उसकी टर्नओवर का पार्ट है। सेक्शन 22 ने क्लियरली दोनों को मेंशन किया है। ये सारे ऐड होने हैं, लेकिन टैक्सेस ऐड नहीं होने एग्रीगेट टर्नओवर करने के लिए। और जो इनवर्ट सप्लाई आप अंडर आरसीएम लेते हैं, दैट विल ऑल्सो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। सो 20 लाख की या 40 लाख की या 10 लाख की 3 लिमिट्स हैं। जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो हमें सेक्शन 2 क्लॉज 6 को ध्यान में रखना है। अगर आपकी 20 लाख की लिमिट है सारी स्टेट्स में अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो आप 20 लाख की थ्रेशोल्ड को जब क्रॉस करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट, सर एक चीज बता दूं, अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, लेकिन सिर्फ 4 स्टेट्स जो है जीएसटी के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, दैट इज मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। सो अगर आपकी J&K से कोई डीलिंग्स है तो J&K स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी नहीं आता है। सो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ने जब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप अपनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में स्टेट को पावर है कि अगर वो मैक्सिमम कैप 20 लाख का लगाना चाहती है तो लगा सकती है। सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 22। अब आया चेंज यहाँ पे। नॉर्मली हमारा थ्रेशोल्ड 20 लाख है पानीपत में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम आपको 40 लाख का कैप देते हैं, लेकिन आप ये 40 लाख तक, सर सेक्शन 22 में सिर्फ कैपिंग दी गई है। लॉ को अमेंड किया गया फाइनेंस एक्ट 2019 में और कैपिंग दी गई कि आप मैक्सिमम 40 लाख तक लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड सो एंड सो आर द कंडीशंस। आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स होने चाहिए। लेकिन जो इसकी नोटिफिकेशन है वो सेक्शन 23 में आई है, सेक्शन 23 में आई है। सो 22 में उन्होंने कैप क्रिएट कर दिया कि आप ये लिमिट को 40 लाख तक भी लेके जा सकते हो अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो। और जब वो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स डील करते थे ना, सर किसी ना किसी का
इंटरेस्ट डिपॉजिट पे या इंटरेस्ट इनकम होती थी, तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी कि चाहे आपकी कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इनकम, तो हम उसको एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स ही मानेंगे। तो उन्होंने लिमिट 40 लाख की और साथ में एक्सप्लेनेशन डाल दी कि इंटरेस्ट इनकम को होने पर भी आपको एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स माना जाएगा। अभी जब हम सेक्शन 23 करेंगे तो हम देखेंगे इस नोटिफिकेशन को डिटेल में, राइट। सो अगर आप 20 लाख की थ्रेशोल्ड को ज्यादा करते हो, आप उसको क्रॉस करते हो, तो आपको ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन जहां से आप सप्लाई कर रहे हो वहां पे लेने की जरूरत है। सर अगर मैं इसमें आऊं ना, वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, क्योंकि इट इज रेफरिंग टू प्लेस ऑफ बिजनेस। फॉर योर रेफरेंस आई हैव पुट इन हियर द सम डेफिनेशन कि एग्जाम सप्लाई क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, यहाँ पे मैंने प्लेस ऑफ बिजनेस भी की। अगर कोई मेरा वेयर हाउस या गोडाउन है तो वो भी मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाती है। कई बार हमें क्वेरी आती है कि मैं तो वहां से कुछ सप्लाई नहीं कर रहा। सर आप वहां से कुछ सप्लाई नहीं कर रहे हो, पर क्या आपका वेयर हाउस आपकी दूसरी ब्रांचेस को, दूसरे ऑफिसेस को सर्विसेज दे रहा है? So lots of issues are to be kept in mind. क्या मुझे वेयर हाउस, गोडाउन, ये सारी आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस मानी गई हैं, बट आप जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सर ये केस कब आता है? कंपनीज के केस में। एग्जांपल, कंपनी पानीपत में है, यूनिट पानीपत में है, उसका हेड ऑफिस रजिस्टर्ड एड्रेस दिल्ली का है, वेरी नॉर्मल केस। तो क्या उसको दिल्ली के हेड ऑफिस की भी रजिस्ट्रेशन करानी है कि सिर्फ पंजाब वाले की, सिर्फ हरियाणा वाले की, पानीपत वाले की करानी है? तो टैक्सेबल सप्लाई माल कहाँ बेच रहा है? वो तो पानीपत में ही बेच रहा है, बट वहां पे जो ऑफिस है वहां पे मेरा सीईओ बैठता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस चार्ज, लॉट्स ऑफ थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर। सो ऑल्दो सेक्शन 22 सेज कि सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जहां से कर रहे हो वहीं रजिस्ट्रेशन करानी है, बट आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरी दूसरी ब्रांच है क्या, या हेड ऑफिस है, क्या वो मेरी दूसरी ब्रांच को सर्विसेज दे रही है, क्या मुझे क्रॉस चार्ज करना है? तो इन सारी चीजों को ध्यान में जरूर रखेगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। हो सकता है आप अपना दिल्ली ऑफिस को रजिस्टर ही ना कराया हो, तो प्लीज कीप इट इन माइंड, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वेयर एवर यू आर मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ और एक चीज और, सर जीएसटी में ना कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। ये जो 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख में जो बात कर रही हूँ, दिस इज अ रजिस्ट्रेशन लिमिट। सिर्फ पहले साल के लिए एग्जाम्पशन है। एक बारी आप 20 लाख को क्रॉस कर गए, एक बारी आपने रजिस्ट्रेशन करा ली, उसके बाद हमेशा आपको ₹1 से टैक्स पे करना है। आपको कोई 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख की छूट नहीं है। सो मैं ये कहूँ, ये थ्रेश होल्ड है, ये एग्जेम्पशन नहीं है। लाइक इन इनकम टैक्स 2.5 लाख मिलना ही मिलना है, लाइक इन सर्विस टैक्स जो हम 10 लाख का बेनिफिट लेते थे इन केस ऑफ एसएसपी, इट इज नॉट लाइक दैट। नाउ हमने सेक्शन 22 देखा। सेक्शन 22 के बाद हम आए सेक्शन 23 पे। सर अभी सेक्शन 22 और 23 जब हम दोनों पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम इसके प्रैक्टिकल केसेस भी कुछ देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन, अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 22 और सेक्शन 23 के कंबाइंड इफेक्ट। सर उन्होंने कहा कुछ पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट और नॉट टैक्सेबल गुड्स में डील करते हैं, या वो कोई एग्रीकल्चरिस्ट है। सर एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन भी 2 क्लॉज 7 में दी हुई है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। So I put in the definition of agriculturist also. जो पर्सन, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफई कवर्ड है, सो कंपनीज आर नॉट कवर्ड। सो अगर कंपनी कल्टीवेशन टेकअप करती है तो वो एग्रीकल्चरिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी नहीं मानी जाएगी। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट गुड्स में डील करते हैं या नॉट लायबल टू टैक्स, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और योर दिस अल्कोहलिक लिकर एटसेट्रा नॉट लायबल टू जीएसटी वाले प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। Then came section 23 clause 2. 23(2) ने कहा गवर्नमेंट तुम्हारे पास पावर है
तुम अपनी बहुत सारी, तुम बता सकती हो कौन ऐसे और लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एंड हियर द पावर इज यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने लिमिट 40 लाख की है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 22 में उन्होंने प्रोविजन क्रिएट किया, सेक्शन 23(2) में उन्होंने नोटिफिकेशन दी, और ये बहुत सारी नोटिफिकेशन आई हैं जिनको हम रेलेवेंट जगह पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 22 ने कहा, सेक्शन 23(2) ने कहा 10/2019 कहती है अगर आप एक एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो आपको 40 लाख की थ्रेशोल्ड मिलेगी, लेकिन आप ना तो इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हो, सर परचेज कर सकते हो, इंटरस्टेट सप्लाई सेल नहीं कर सकते। यानी अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कवर्ड हो, पान मसाला टबैको के हो और ये वाली स्टेट्स में हो, या फिर आप खुद ही वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको जी 40 लाख के नीचे में रजिस्टर ही नहीं हो सकती। नो, ऐसा नहीं है। आप अगर वॉलंटरी अपनी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 23(2) कहता है कि 40 लाख की लिमिट तक आपको, बट सिर्फ गुड्स वाले को, नॉट सर्विसेज। आप एक छोटे डीलर हो, इंटरस्टेट आपकी डीलिंग है, मैं इसे कहूँ रिटेल काउंटर्स, because they generally don't supply. For them the limit is 40 lakhs if they are not dealing in these products, they are not the supplier of these products, तो आपके लिए लिमिट 40 लाख है। अब हम वही एग्जांपल्स देख लेते हैं जो अभी हमने 22 और 23 की कंबाइंड रीडिंग से ली। सर दिल्ली, पंजाब, मणिपुर सेल है 555, रजिस्ट्रेशन करानी है। सर मणिपुर इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, क्योंकि मणिपुर एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, मेरी सारी लिमिट 10 लाख हो जाएगी। सो एज अ रिजल्ट आपको यहाँ पे, सर और ये भी बता दूं, ये जो 40 लाख की नोटिफिकेशन है ये स्टेट्स ने देनी है, और अभी तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये सब 40 लाख की दे चुके हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। क्योंकि मेरी एक मणिपुर की स्टेट है ये, दिस इज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो मेरी सारी लिमिट 10 लाख हो जाएगी और मुझे सारी जगह पे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। सर द लिमिट ऑफ 20 lakh, 10 lakh, 40 lakh is to be checked pan wise, हमें उसको pan wise चेक करना है ओवरऑल। सो अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लायर हो एग्जम्प्ट गुड्स के, जैसे 20 और 10, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है एग्जम्प्ट प्रोडक्ट्स के। अगर आप अब थर्ड केस में एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है, कंसिडरिंग वो अदर रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है 40 लाख की क्रॉस करने पर ही करवानी है, राइट। तो ये हमारी एग्जांपल थी। अब इसमें बहुत सारे ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अमेलगमेशन, डीमर्जर हमने पहले डिस्कस किया। सर कंस्ट्रक्शन वर्क वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत सारी एआर रिसेंट में भी आई हैं जो कहती है अगर आप, सर बात दो चीजों में ना कंट्रास्ट होता है, ये 2 पॉइंट्स हैं। मैं एज ए सप्लायर 4 जगह पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, डिफरेंट स्टेट्स में, हरियाणा, डिफरेंट स्टेट्स में, तो क्या मुझे चारों जगह पे रजिस्ट्रेशन करानी है? सर इसमें जो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज गिवन इन 2 clause 85, जिसको हमने डिस्कस किया था। अगर आप साइट पे अपने गुड्स रखते हो, अगर आप साइट को आपने वहां गोडाउन बनाया है, आप रेगुलरली वहां से कर रहे हो, तो वो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी और आपको रजिस्ट्रेशन सेपरेट करानी पड़ेगी दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, हरियाणा की। This is a view which has been given by various AARs that I have mentioned. There are some Rajasthan AAR, Jamin Engineering की भी है जो कहते हैं सेपरेट कराओ, लेकिन एक recent AAR आई है 2020 में जो कहती है कि आपको, कर्नाटका है T&D इलेक्ट्रिकल्स, कि आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ध्यान रख लेना, अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे और आप गुड्स प्रोक्योर करोगे विद CGST, SGST ऑफ दैट स्टेट, आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे। सो आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे कि मैं मेरे को जो गुड्स आ रहे हैं क्या मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने में बेनिफिट है या नहीं है। Whereas in case of rental services it is not so. सर रजिस्ट्रेशन को कभी भी प्लेस ऑफ सप्लाई से कंफ्यूज मत करिएगा। प्लेस ऑफ सप्लायर पे रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई हम देखते हैं ये चेक करने के लिए कि CGST, SGST लगना है या IGST लगना है। Whereas रजिस्टर वो बात की बात है, बट मुझे रजिस्ट्रेशन कहाँ करानी है वो डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ सप्लायर पे।
लोकेशन ऑफ सप्लायर पे, ना कि और मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस पे, ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई पे। सो जो रेंटल सर्विसेज हैं वो एक, उसमें ट्रेस ऑफ गुड्स ट्रेल अवेलेबल नहीं है। इसमें तो कंस्ट्रक्शन वर्क में मुझे पता है मेरा वहां गोडाउन है, मेरे गुड्स पड़े हुए हैं, बट इन केस ऑफ रेंटल देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स। तो एज अ रिजल्ट हम कहते हैं कि मैं पंजाब में बैठ के, पानीपत में भी अगर मेरी प्रॉपर्टी है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो पानीपत ही रहेगी, बट रजिस्ट्रेशन कहाँ करानी है, पंजाब या पानीपत। तो आई कैन से इट कैन बी इन केस ऑफ द रेंटेड प्रेमाइसेस, मुझे वहां पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आएगा पिक्चर, मैंने लेट्स सपोज डिसाइड किया मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगी और मैं पंजाब से ही सारी सप्लाई करूंगी। सो इन दैट केस मैं इनवॉइस पंजाब के नंबर से रेज करूंगी। नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई कम्स इनटू पिक्चर, कि मुझे आईजीएसटी लगाना है कि सीजीएसटी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि बनेगा पानीपत, तो मैं लगाऊंगी आईजीएस। Are you getting? So the place of supply is entirely a different concept. Moving ahead, sir, charitable organization. प्लीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं, सोचते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस तो एग्जाम्प्ट है, उनको तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। सो लेट मी टेल यू सर, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ वो एक्टिविटीज एग्जाम्प्ट हैं जो चैरिटेबल नेचर की हैं। बट अगर वो कोई रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, कोई फार्मेसी शॉप्स रन कर रहे हैं, तो उनको एग्जेम्पशन नहीं है। येस्टरडे, अ फ्यू डेज बैक, आई रिसीव्ड अ क्वेरी। हॉस्पिटल है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, उसने एसेट सेल कर दिए 50 लाख के, क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? यस चाहिए, क्योंकि उनकी सारी एक्टिविटीज एग्जाम नहीं है। अगर वो सेल ऑफ स्क्रैप करते हैं या कुछ भी करते हैं, दे आर लायबल फॉर दिस। सो आई पुट इन सम एआरस आल्सो, बहुत सारी एआरस मिलेंगी जो इसके साथ डील करती हैं। सो अब अगर मैं आगे चलूं, नेक्स्ट इज सर, ये इंपॉर्टेंट केस लॉज है, मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ, बट ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ टाइम आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस दिस। बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है, मेरी इंपोर्ट हो रही है मुंबई पोर्ट पे, वहां से ही मैं अपने दूसरी गुजरात में या मुंबई में गुड्स डिलीवर करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे मुंबई पे भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? तो कार्डेक्स इंडिया स्टोरेज का एआर आया है या एरल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आया है, दिस इज नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। आप प्लेस ऑफ डिस्पैच मुंबई डाल सकते हैं, वहां से डायरेक्ट डिलीवरी करा सकते हैं, आपको वहां पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टुवर्ड सेक्शन 24, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सर, सेक्शन 22(1) को ओवर रूल करता है, यानी थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं लगेगी। आई गिव यू अ फूड फॉर थॉट, ये सिर्फ सेक्शन 22 को ओवर रूल कर रहा है, इस सेक्शन 23 को ओवर रूल नहीं करता है। सो ये मैंने क्यों कहा, अगर आई वुड हैव बीन हैविंग द टाइम, आई वुड हैव डिस्कस्ड विद यू कि किस तरह से, अगर मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं लीकर, आई एम अ पर्सन डीलिंग इन लीकर, आपको पता है एंटिटीज को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हेन मानो माय लीकर क्लाइंट केम टू मी एंड सेड कि मेरी टर्नओवर 800 करोड़ की है, लीकर क्लाइंट्स यूजुअली हैव ह्यूज टर्नओवर्स, सो 800 करोड़ की टर्नओवर है एंड लीकर इज आउट ऑफ जीएसटी, आई एम नॉट लायबल टू रजिस्टर, बट आई एम टेकिंग अ जीटीए सर्विस, ट्रांसपोर्ट जीटीए ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहा हूं, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है? सो आंसर वाज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में ये कवर्ड होता है, जीटीए रिवर्स चार्ज, लेकिन हमने उसमें लिटिगेशन को प्रेफर किया, नॉट विथस्टैंडिंग इसने सेक्शन 23 को ओवर रूल नहीं किया। सो अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट प्रोडक्ट में या नॉट लायबल टू जीएसटी प्रोडक्ट्स में डील करता है, so in that case we can take the benefit of this clause notwithstanding anything contained in section 22. So moving ahead, ये सारी एंट्रीज हैं, इनको मैं वन बाय वन ले रही हूँ। फर्स्ट इज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। सर, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस करते हो, चाहे 1 रुपए की भी करो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें ये सारी नोटिफिकेशन दी है। एग्जाम्पल लेती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पहले जब जीएसटी आया, आई वाज अलॉटेड अ बैंक ऑडिट जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस चंडीगढ़ था।
एंड क्योंकि फीस चंडीगढ़ से आनी थी स्टॉक ऑडिट की, सो आई वाज टू गेट रजिस्टर्ड, क्योंकि सेपरेट स्टेट थी, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ, आई टुक द रजिस्ट्रेशन। लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट ने 13/10/2017 को कर दिया इंटरस्टेट टैक्सेबल सर्विसेज को 20 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट दे दी, यानी एक्सेप्शन क्रिएट कर दी सेक्शन 24 की, कि चाहे ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है बट फिर भी आपको लेने की जरूरत नहीं, बट माइंड द वर्ड्स, इट इज ओनली फॉर सर्विसेज नॉट फॉर गुड्स। हैंडीक्राफ्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती थी और जॉब वर्कर को बचाना चाहती थी। सो वेरियस नोटिफिकेशंस हैव बीन इशूड कि जहां इंटरस्टेट सप्लाई भी होगी लेकिन स्टिल हम उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए कवर नहीं करेंगे। These are the few examples which I have put in here, which you can refer to. Sir, casual taxable person. अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या मतलब है? जो ओकेजनली, कभी कभी वहां पे उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, सर ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक जगह पे मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, फिर मैं दूसरी जगह पे जा रही हूँ जहां मेरा फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो मुझे वहां पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर बोथ the goods and services, but it is mostly used in respect of goods. और इसमें सर एक सर्कुलर भी आया हुआ है, क्योंकि ज्वेलर्स वगैरह जो थे, दे यूज टू कैरी देयर गोल्ड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। वो कहते थे हमें पता ही नहीं है हमने कहाँ बेचना है, कहाँ करना है। सो गुड्स, इसमें गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू कर दिया कि इफ यू आर नॉट एबल टू एसर्टेन कि कहाँ आप एक्चुअल सप्लाईज करने जा रहे हो, तो हम आपको बेनिफिट देते हैं कि आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डिलीवरी चलान के बेसिस पे अपने गुड्स लेके जा सकते हैं। सर जिस तरह से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट जो है वो लोकल इंडिया के लिए है, ऐसे ही नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेम टू सेम, इंडिया के बाहर का कोई पर्सन इंडिया में आता है और वो गुड्स बेचना चाहता है, तो उसके लिए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अभी मैंने डिस्कस किया जो लोगों को आरसीएम में टैक्स पे करना है उनके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। नाउ आई क्विकली वांट टू सी वन थिंग इन द चैट बॉक्स। मैंने किसी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने लॉयर को 5,000 रुपीज एक लिटिगेशन की फीस पे कर दी। एक पर्सन है वो अनरजिस्टर्ड है, 5,000 रुपीज किसी एडवोकेट को, आपको पता है एडवोकेट सर्विसेज आर कवर्ड अंडर आरसीएम, तो क्या उसको कंपल्सरी रजिस्टर कराना पड़ेगा, यस और नो? सर इज एनीबडी देयर, और मैं खुद ही बोल रही हूँ? गलत, सही, एनी आंसर, यस नो? इससे तो दो चीजें क्लियर होती है, या तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा या, और यहाँ केस वही लग रहा है। नहीं मैडम, सब सुन रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसी बात है। ठीक है सर, चलिए मैं इसको फटाफट से वाइंड अप करती हूँ। तो सर वैसे तो मैं कंपल्सरी चार्ज में कवर हूँ अगर मैं 5,000 की भी करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीरियल नंबर 45 ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017 देखा ही नहीं। उसमें उन्होंने कहा अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और आप किसी एडवोकेट से सर्विसेज ले रहे हो तो हम उसको आपको एग्जेम्पशन देते हैं। सर तो प्लीज एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जरूर चेक करें, और जब आप आरसीएम देखेंगे तो आरसीएम में गुड्स की नोटिफिकेशंस, एग्जाम्पशन की आरसीएम की कौन सी है, सर्विसेज की कौन सी है, मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट किया। तो सर कैन यू प्लीज पुट द माइक ऑन म्यूट? या थैंक यू। सो गुड्स और सर्विसेज के केस में कई नोटिफिकेशंस है, इवन जीटीए के लिए भी है। सीरियल नंबर 21A जो है, प्लीज उसको रेफर कीजिएगा, सीरियल नंबर 45। तो आप देखेंगे वेरियस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशंस हैव बीन इशूड, जहां पे सर्विसेज, और जीटीए की जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए नहीं है। तो जो मैंने एग्जांपल डाली है कि पर्सन की सेल सिर्फ 15 लाख है लेकिन उसने 30,000 की जीटीए की सर्विस ले ली है, तो वो कवर्ड हो जाएगा अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा था, ई कॉमर्स ऑपरेटर, आई वांट टू डिस्कस। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है ई कॉमर्स ऑपरेटर में एंड उनकी डीलिंग्स में। सर कहाँ ये पिक्चर में आता है, हम सोचते हैं हम कौन सा ई कॉमर्स वाले को डील कर रहे हैं, लेकिन
कहाँ आता है? मेरा एक क्लाइंट है, छोटा सा वेंडर है, वो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू गुड सप्लाई कर रहा है, अब उसको तो मैंने ही डील करना है। जोमेटो के थ्रू उसने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट रजिस्टर कराया हुआ, तो यहाँ पे हमें ई कॉमर्स वाले पर्सन्स की इंपॉर्टेंस पता लगती है। एक बार आप मेरे साथ ये 5 मिनट्स के लिए चार्ट देखिए, रेस्ट जो है हम उसको क्विकली कवर कर लेंगे। जस्ट अनदर 4-5 मिनट्स ऑफ योर्स रिक्वायर्ड। ए लिमिटेड का ई कॉमर्स पोर्टल, सर अगर उसने अपना ही ई कॉमर्स पोर्टल बनाया तो देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट। सर ई कॉमर्स में देयर आर ऑलवेज 3 पार्टीज इन्वॉल्व, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लायर एंड द रिसीवर। अगर 3 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है तो वो कभी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस जीएसटी वाले ई कॉमर्स में नहीं आएंगे। सो अगर ए लिमिटेड ने अपना ही पोर्टल शुरू किया है so there is no question of TCS, there is no question of compulsory registration, क्योंकि फिर उसको 10 लाख 20 लाख 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। लेकिन बात आती है जब मैं किसी और का पोर्टल यूज कर रही हूँ, अब द इशू इज वेदर आई एम सप्लाइंग सर्विसेज और आई एम सप्लाइंग गुड्स। सर अगर तो अब मैं गुड्स में एग्जांपल लूं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अगर मैं गुड्स सप्लाई कर रही हूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के थ्रू, तो मुझे टीसीएस कलेक्ट करना होता है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मेरा एक क्लाइंट है वो अपना ऑयल सेल करता है अमेजॉन के थ्रू, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करानी है। फ्लिपकार्ट अमेजॉन आपसे नंबर लिए बिना आपके साथ डील नहीं करेंगे और वो आपका टीसीएस भी काटेंगे। सो गुड्स के केस में तो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। नाउ वी कम टू सर्विसेज पार्ट। इन केस ऑफ सर्विसेज, सर मैंने आपको 9(5) छुड़वाया था और कहा था जब मैं रजिस्ट्रेशन पे आऊंगी तो मैं आपको 9(5) की रेलेवेंस बताऊंगी। सर्विसेज के केस में मुझे देखना है क्या वो 9(5) का ई कॉमर्स ऑपरेटर है या दूसरी सर्विसेज का। सर 9(5) का ई कॉमर्स ऑपरेटर की 3 एग्जांपल्स हैं। 9(5) के सर्विसेज के ई कॉमर्स के 3 पर्सन ही कवर्ड है। पहला, ओला उबेर, एग्रीगेटर्स, टैक्सीज। सेकंड, योर एमएमटी, सप्लायर ऑफ होटल्स, एंड थर्ड, हाउसकीपिंग, यानी कि दिस ओला उबेर, होटल्स एंड हाउसकीपिंग। एग्जांपल इज अर्बन क्लैप। अगर आप इन तीनों के थ्रू सर्विसेज रेंडर कर रहे हो तो भाई साहब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन तीनों के थ्रू सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आप डीम्ड सप्लायर नहीं, उस केस में ओला उबेर, एमएमटी, अर्बन क्लैप डीम्ड सप्लायर माना जाएगा। गवर्नमेंट कहती है मैं छोटे छोटे ड्राइवर से, मैं छोटे छोटे हाउसकीपर से इनको कैच नहीं करूंगी, मैं तो एग्रीगेटर को कैच करूंगी, ओला उबेर, अर्बन क्लैप, एमएमटी। So they will be deemed supplier, यानी जो एक्चुअल सप्लायर है वो बाहर हो जाए, राइट? और सिर्फ 3, सर ये 3 नोटिफिकेशन 17/2017 में आए हैं, ये उसकी नोटिफिकेशन है। और एक बात याद रखिएगा, होटल वाला तभी कवर्ड है अगर होटल खुद छोटा होटल है, यानी होटल वाले की अपनी सेल अगर 20 लाख से नीचे है तो एमएमटी तुम उसके लिए लायबल हो। अगर वो एक बड़ा होटल है यानी उसकी अपनी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो फिर वो होटल खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, राइट? सो उन्होंने कहा कि अगर आप 9(5) के सर्विस पर्सन वाले हैं तो उस केस में आपके एग्रीगेटर को डीम्ड सप्लायर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज इनके अलावा है, यानी जोमेटो, अदर सर्विसेज में मैं किसको कवर करूंगी? जोमेटो। आपने देखा ना तो वो एमएमटी है, ना वो अर्बन क्लैप है, ना वो ओला उबेर है, ना वो गुड्स के साथ डील करता है। फूड इज अ सर्विस, सो आपको बेनिफिट दिया गया। अगर आप अपना खाना जोमेटो के थ्रू भेज रहे हो तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 65/17 में आपको कहा चाहे आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कवर थे बट हम आपको बेनिफिट देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपको थ्रेशोल्ड 20 लाख की मिलेगी। और अगर आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस करोगे, सर एक बात याद रखिएगा, ई कॉमर्स पोर्टल वाला टीसीएस तभी काटता है अगर वो टैक्सेबल पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन का वो टीसीएस नहीं काटता। तो गुड्स के केस में टीसीएस लगता है,
9(5) में, क्योंकि सप्लायर जो एग्रीगेटरी डीम्ड सप्लायर है, दूसरे पर्सन ने पिक्चर में नहीं आना, उसमें भी टीसीएस नहीं लगता। टीसीएस लगता है अदर सर्विसेज में, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, थ्रेशोल्ड से ऊपर है, रजिस्टर्ड है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इससे हमने सेक्शन 24 के बहुत सारे क्लॉजेस कवर कर लिए कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन, ई कॉमर्स, सर सारे ई कॉमर्स वालों को खुद की रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है। अब जो पर्सन उसके थ्रू सप्लाई कर रहा है, अगर वो अदर सर्विसेज में है या वो 9(5) की सर्विसेज में है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की कंपलसरी लिमिट नहीं लगेगी ओइंग टू दिस नोटिफिकेशन। सो 9(5) वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ई कॉमर्स वाले को है, दूसरों को नहीं है। सो विद दिस सेक्शन 24 स्टैंड्स कवर्ड। इसमें एक आपका था प्रिंसिपल एजेंट का। सर बहुत सारी क्वेरीज आती है, मेरा एक पर्सन है वो दूध दही किसी एजेंट के थ्रू सप्लाई करता है, कपड़ा किसी एजेंट के थ्रू सप्लाई करता है, तो क्या उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? नो। इनवॉइस देखिए, अगर मैं, सर एलआईसी के केस में जो एजेंट होता है ना, वो कभी अपने नाम का इनवॉइस नहीं देता, वो इनवॉइस देता है कंपनी के नाम का। तो अगर आपका एजेंट अपने नाम पे पहले गुड्स खरीदता और अपने नाम से इनवॉइस इश्यू करेगा तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं। सो दीज वर द वेरियस इश्यूज जो कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कवर्ड है। इसके अलावा मैंने सेक्शन 25 का प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है व्हिच यू कैन इजीली गो थ्रू। आई हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स फॉर दिस। इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपके जो है वो देखने की जरूरत है कि पहले यहाँ पे बिजनेस वर्टिकल्स के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होती थी। जैसे मेरे एक यूनिट होटल का है, एक मेरा कोई स्यूइंग डिवीजन है, या तो मैं बिजनेस वर्टिकल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करा सकती थी। गवर्नमेंट ने वो कॉन्सेप्ट खत्म करके, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, वहां पे मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस कर दिया, यानी लोकेशन के हिसाब से अब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जिसके मैंने बेनिफिट्स और ड्रॉबैक दोनों आपको यहाँ प्रोवाइड किए। There are certain amendments also with respect to Aadhaar card etc. जिसकी verification जरूरी है, which you can go through in the slides. And with this I end my deliberation. And thank you so much for the patient listening. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you for the wonderful deliberation. And if any member have any query, I am unmuting all. So please, he can ask. Aanchal ma'am is here only. दो के गए भेजे। Yes, sir. जयपुर ब्रांच में क्लासेस लगा रखी हैं, सब लगा रहे हैं क्लासेस। भाई बच्चे जैसे मैम पीपीटी, सर पीपीटी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड जसप्रीत जी। PPT में भी शेयर कर ब्रांच विल बी शेयरिंग विद यू। दूंगा। अपार्ट फ्रॉम पीपीटी मैं आपको केस लॉस का भी केस लॉस रजिस्ट्रेशन पे आए हैं, मैं वो सारे आपके साथ शेयर करूंगी। मैं वो भी सर आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप फॉरवर्ड करें। मैडम एक चीज और मैं आपसे थोड़ा सा क्लियर कर रहा था, जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और मेरी 1 सितंबर को मेरी टर्नओवर क्रॉस हुई 40 लाख रिस्पेक्टिवली, जी वो मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। लेकिन जब मुझे जीएसटी नंबर, तब मुझे ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज एक बार सबको या तो म्यूट कर दीजिए और यू स्पीक प्लीज। वो तो कोई 50 एक फाइल है जीएसटी 40-50 नहीं चरिया चरी चलो क्या चरी बस अच्छा समझ कर नहीं, लेकिन फिर वो या मैम आप आवाज आ रही है मैम आपको मेरी? हाँ जी सर, नाउ इट इज क्लियर। मैं ये कह रहा था कि जैसे 1 सितंबर को मेरी टर्नओवर क्रॉस हुई मोर देन 20 लाख और 40 लाख Okay. तो रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी होगी विद इन 30 डेज मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर मान लो मेरे पास जैसे अगर 4-5 दिन के अंदर जीएसटी नंबर आ गया तो मुझे जो जीएसटी पे करना है वो जो 1 अप्रैल से लेकर और 30 अगस्त 31 अगस्त तक उस टर्नओवर पे करना है या रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वाली टर्नओवर पे करना है?
सर जैसे ही आपने 20 लाख की टर्नओवर क्रॉस की और लेट्स सपोज आपकी जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है आपकी 1 लाख की टर्नओवर और हो गई, यानी 21 लाख हो गई, तो जो आपका एडिशनल 1 लाख आया है आपको उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है और वो आपने रजिस्ट्रेशन आने के बाद उसको डिपॉजिट भी कराना है। तो मतलब जो पहले की जो 20 लाख है उसकी उस पे नहीं करना हमारे पास? सर पहले 20 लाख पे नहीं करना, हाँ जो 20 लाख से ऊपर 1 लाख हुआ है टिल द टाइम यू गेट द नंबर उस 1 लाख के ऊपर आप टैक्स कलेक्ट भी करेंगे और जमा भी करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। एंड सर वन मोर क्वेरी, इन केस ऑफ जैसे ओला और उबर का जो केस है मैम, उसमें जो जी। एग्रीगेटर होते हैं जो ओला उबर कंपनी को, जैसे मेरे पास अगर बस है या वैन है, तो मैं अगर ओला उबर कंपनी को एज एग्रीगेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और ओला कंपनी आके सर आप सप्लायर हैं, ओला उबेर एग्रीगेटर है, तो अच्छा। आपने अपनी गाड़ी दी है ओला उबेर को, तो उस केस में मैम मेरे को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं ओला सर कंपनी? आप उसमें 9(5) में कवर्ड है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उसमें ओला उबेर ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। Any member have any query, please? You can ask. Otherwise, time is over. So, इसमें पैसे तो नहीं वो बंदे के सरदार हाँ गांधी हम्म। वो लियाकत ही काट दे। thank you Aanchal ma'am, thank you for the wonderful deliberation. और मैं पूरी पानीपत ब्रांच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन फ्यूचर भी कभी भी आपकी जरूरत पड़ेगी मैम तो हम दोबारा आपको सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए याद करेंगे। और थैंक यू वेरी Sure मच। sir, thank you so much sir, थैंक यू सो मच मैम। मीटिंग इज ओवर नाउ, थैंक यू।